This call is now being recorded. Okay, before we start, I was discussing about the module number 2 of the topic. Fine. Representation of control system and state space analysis. Today, we are going to discuss 2.1 block diagram representation of the system, block diagram reduction method, closed transfer function already we have done, adhering to signal flow graph Masongen rule, that we will do it later on. Today, my main focus, today the prominent thing that we'll be discussing will be block diagram reduction and block diagram representation. Very important topic. इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरी श्योर शॉट आने वाला है. You can expect a 10 mark question from the topic of block diagram representation and block diagram reduction method. Before we start with this, I would like to make you clear one thing very important. Is the most easiest and the most simplest topic. You can score aram se 10 out of 10 in this. It's very simple. It's only require a basic logical database. If your logical database is strong enough, then this block diagram is in your pocket. It doesn't require at all any kind of high speed calculation or any kind of rocket science. बस आपका लॉजिकल डेटाबेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. ये अगर आपके अंदर है तो ये ब्लॉक डायग्राम आपके फेवर में आ जाता है. Now, before we start with this topic, let's understand what do you mean by the term block diagram. क्या समझते हैं सर आपको ये किस चिड़िया का नाम है भाई? ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? What do you understand by the word block diagram? If I write this on the board, what do you mean by block diagram? What do you think? What it would be? A logical representation of steps and the logic flow. Okay, very good. I'll give an example to you. ठीक है? Example ये आपकी रीना मैडम है. ठीक है? रीना मैडम को आपसे बात करना है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम को बुक करवा दिया. ठीक है? एक ऑडिटोरियम बुक करने के बाद रीना मैडम यहाँ पे खड़ी है एंड शी इज अबाउट टू एड्रेस द एंटायर क्राउड. बट व्हाट हैपेंड, यहाँ पे जो लोग जो यहाँ पे है, दिस पीपल ओवर हियर, दे आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग व्हाट मैडम इज ट्राइंग टू से. व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द सेम? तो यहाँ पे जो इंजीनियर था, इंजीनियर बड़ा काम करते हैं. यहाँ पे हम लोग एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेकर आते हैं. सर क्या मतलब होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम का? तो यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, एक डब्बा डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, और एक डब्बा क्या करने वाला है, डब्बा जो है वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा VI और आउटपुट देने वाला है VO. ये डब्बा जो है वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट VO मुझे देने वाला है. समझा आपको यहाँ तक? यस सर, अंडरस्टूड. नाउ आई विल आस्क यू what will be VO sir? तो आप बोलेगे सर VO is simply equal to A times VI. What is A? तो आप बोलेगे सर A is the gain of the amplifier. A is the gain of the amplifier. Understood sir? Yes. Sir, now I'll ask you as your engineering knowledge, what you might have studied in your second year. Sir, ये block के अंदर क्या? What is there inside the block? What is there inside this block? You'll tell me sir, inside the block there is an amplifier. What is an amplifier? तो tell me sir, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है और फिर ट्रांजिस्टर के जो है आप यहाँ पे रजिस्टर लगाते हो, RC, RE, R1, R2, CC1, CC2 एंड सो ऑन. अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो डब्बा दिख रहा है. वो डब्बे को अगर मैं खोलता हूं तो मुझे सर्किट डायग्राम दिखेगा. डब्बे को अगर मैं बंद कर दूंगा तो मुझे केवल डब्बा दिखेगा. तो मेरा मतलब, मेरा कंसर्न अभी सिर्फ वो डब्बे से है. ओके चलो सर, आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ब्लॉक. I understood the meaning of block diagram. Very good, sir. Now let me ask another question to you. रीना मैडम का लेक्चर इतना अच्छा लगा लोगों को कि और लोग यहाँ पे जमना शुरू हो गए, और लोग यहाँ पे जमना शुरू हो गए, और लोग यहाँ पे जमना शुरू हो गए. But now what happened? The voice of रीना मैडम was only audible to this range. ये बच्चों को आवाज आ ही नहीं रहा है. ये बच्चों को आवाज आ ही नहीं रहा है. क्या करोगे सर? What will you do to solve this problem now? What is the solution to this engineering problem? The students in the zone B or in the zone C are not able to hear anything what madam is trying to speak. What is the solution? So microphone and speaker system.
यस, तो आपने क्या बोला सर, यहाँ पे मुझे और एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, मुझे और एक एम्पलीफायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं और एक एम्पलीफायर लगा देता हूँ, इसको हम कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये बन गया एम्पलीफायर A1 और ये आपका बन गया एम्पलीफायर A2। I'll show you what I'm trying to say. So this is my amplifier number A1। इसका आउटपुट मैंने इसको दे दिया, ठीक है, और यहां से मैंने मेजर आउटपुट बाहर निकाला। सो नाउ आई कैन से माय फाइनल आउटपुट विल बी इक्वल टू VO इक्वल टू A1 टाइम्स A2 टाइम्स VI। तो दिस इज माय फाइनल आउटपुट। अंडरस्टूड? यस सर, समझा यहां तक? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज माय बेसिकली अ मेजर बड़ा वाला बॉक्स। ओके, तो ये मेरा बाहुबली वाला एम्पलीफायर है, बाहुबली वाला मेरा ब्लॉक है, और ये ब्लॉक के अंदर दो छोटे छोटे एम्पलीफायर लगे हुए हैं। ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज माय मेजर ब्लॉक डायग्राम। ओके, इसको मैं नाम कहता हूं A, और ये डब्बा अगर मैं ओपन किया A वाला, उसके अंदर मुझे मिलेगा A1 एंड A2। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस A इज मेड अप ऑफ A1 एंड A2। तो ये भी एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, और दोनों ब्लॉक को मैंने कंबाइन करके, दोनों ब्लॉक को मैंने रिड्यूस करके, दोनों ब्लॉक को मैंने रिडक्शन करके एक नया ब्लॉक बनाया A बोलकर। तो A इज द मास्टर ब्लॉक, A इज द universal block which comprise of sub blocks A1, A2, A3, A4 and so on. Have you understood the meaning of block diagram reduction? What is it? Is it clear to you? Yes, sir. Okay, very good, sir. Now, let me ask another question to you. Sir, यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था ब्लॉक डायग्राम से। तो ब्लॉक डायग्राम की अगर डिस्कस करें तो आपने बोला देखो सर, ये है मेरा डब्बा जिसको मैं कहता हूं A1। A1 जो है वो डब्बे का गेन है, डब्बे का एफिशिएंसी है, डब्बे का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, डब्बे का प्रोसेसिंग पावर है। ओके, ये डब्बे को आपने इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया? V1 VI। ये डब्बे से जो अपने आउटपुट निकाला, वो डब्बे का वो आउटपुट क्या है? VO है। सर नाउ टेल मी सर, व्हाट इज VI? What is VI? Sir, VI is the input. What is VO? VO is the output. Yes, yes sir, agreed. Now tell me sir, ये जो डेटा है VI कितना है? VI फॉर एग्जाम्पल सपोज अपने लिए कहता है VI is 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का जो डेटा है, 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो करंट जो फ्लो होने वाले, वो करंट कहां जाएगा सर? डब्बे के अंदर के डब्बे के बाहर, डब्बे के अंदर के डब्बे के बाहर, अंदर। वाई अंदर? बिकॉज आपने एरो ऐसे बनाया है, बिकॉज आपका एरो ऐसा है। एरो इंडिकेट्स सिग्नल फ्लो, एरो इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन फ्लो। वो फ्लो बताता है कि भाई डेटा अंदर जाने वाला है, और यहां पे पता चलता है कि भाई 2 10s 20 जो यहाँ पे आने वाला है, तो 20 जो है वो बाहर आने वाला है, डेटा इज गोइंग टू कम आउटसाइड। एरो इंडिकेट सिग्नल फ्लो, एरो इंडिकेट इंफॉर्मेशन फ्लो, एरो इंडिकेट मैसेज फ्लो। Understood, sir? So now we have seen what? We have seen what is the meaning of input, what is the meaning of output, what is the meaning of the arrow, and what is the meaning of a block, and why do you reduce the block? Okay, fine, understood. Now let's start with the understanding of this. Okay, so let's come to this. Like क्या होने वाला है यहाँ पे? So I'll start with the PPT, sir. So let's start with the presentation. Okay, now. Block diagram fundamentals and reduction techniques. So we'll be dealing with this. The first we'll be dealing with the fundamentals of the block diagram, and later on we'll be discussing about the reduction techniques. Okay. Now, what's the meaning of a block diagram? As you rightly pronounced, rightly uttered, block diagram is a shorthand graphical representation of a physical system illustrating the functional relationship among its components. तो कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप हमको बताता है कि भाई डेटा यहाँ से आया, यहाँ से बाहर गया, फिर डेटा यहाँ से बाहर आने के बाद में उसके अंदर चला गया, एंड वी गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम इज अ शॉर्ट हैंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। वोल्टेज इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट। अगर आप वोल्टेज दोगे तो आपको करंट मिलेगा, that is the cause, voltage is the cause, and you get the effect. That will come all by means of the block diagram representation. Now let's take another example, sir. For example, I have shown here a single input x. यहाँ पे हमने input बनाया है x, ये आपको x यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये x जो है ये input की तरह act कर रहा है, जो d/dt ब्लॉक के अंदर जाने वाला है, और मुझे आउटपुट मिलने वाला है y। तो इससे क्या समझ में आता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा x है sin x, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ sin?
साइन का यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द ब्लॉक व्हेन आई प्रोवाइड साइन एज एन इनपुट? Cos. Exactly, very good sir, it will be cos. Fine. The interior of the rectangle represents the block, usually contains a description of the name of the element. यहाँ पे description होता है वो block का कि भाई क्या है, काय का डब्बा बनाया आपने, or the symbol for the mathematical operation we performed on the output to yield the output, and the arrow represents the signal flow or the information flow. Fine, जैसा हमने discuss किया था. Very good sir. Now operations जो होता है वो addition होता है, subtraction हो सकता है, ब्लॉक सर्कल बन सकता है, समिंग पॉइंट हो जाएगा वहां पे, प्लस माइनस एनी नंबर इनपुट्स। अभी समझते धीरे धीरे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जस्ट एंड अटेंशन, हैव अ लुक एट दिस। यहां मैंने क्या बनाया, यहां से आया x, ठीक है, एरो, यहां से आया y, ये हो गया एरो, यहां पे दिया है प्लस, यहां पर भी दिया है प्लस। व्हाट विल बी द आउटपुट बेटा? x plus y. I hope you have understood this. Any doubt in this scenario? Operation can be addition. The block becomes a small circle called as summing point. Very very important. इसको याद रखिए सर, summing point. ये summing point कौन है? Summing point जो है यहां से हम एडिशन करते प्लस प्लस। अभी समिंग पॉइंट जो है वहां पे प्लस भी हो सकता है और वहां पे माइनस भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है सर, यहां पे प्लस के जगह पे मैं माइनस लिखूं तो मैं क्या कहूंगा? x minus y. Have you understood sir what I'm trying to say? Okay, now pay attention with this. Now as I rightly told, x minus y, this becomes x minus y. Now any number of inputs may enter summing point. So here we are having three inputs like x, y, z, x plus y plus z. ऐसे मतलब और भी inputs लगा सकते हैं हम लोग, x plus y plus z plus w plus a plus b plus c, x plus a plus minus b plus c plus x, whatever it can be. Fine. Okay. So any number of inputs can enter a summing point, and the output will be always the algebraic sum of the inputs. Output will be always the algebraic sum of the input. तो ये निशानी को अब याद रखिए, निशान क्या है? ये निशान को कहा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, सिंबल इज नोन एज समिंग पॉइंट। दिस सिंबल इज नोन एज समिंग पॉइंट। कोई कोई बुक्स का आदत है कि वो समिंग पॉइंट ऐसा दिखाते हैं, एंड दे राइट प्लस ओवर हियर, दे राइट माइनस ओवर हियर। दिस मींस कि एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा मैंने x, यहाँ पे लिखा मैंने y, इसका मतलब ये होता है कि दिस विल बी x माइनस y। ओके, यहां पे क्या किया है? यहां पे सिर्फ सर्कल बनाया है और प्लस प्लस सर्कल के बाहर लिखा है, और यहां पे सर्कल बना के उसमें क्रॉस डाल दिया है, और क्रॉस लेकिन बनाने के बाद में वहां पे उसने प्लस माइनस दिखा कि हाँ ये x माइनस y हो गया। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, हर बुक का, हर ऑथर का अपना अपना तरीका होता है लिखने का। एज अ फैकल्टी माय रोल इज टू टीच यू ऑल द मेथड्स, ऑल द वेज ऑफ मेकिंग द डायग्राम। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे सर हमने डिस्कशन किया समिंग पॉइंट के बारे में। याद रखिए सर, समिंग पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये देखिए जो आपको मैंने डिस्कशन किया यहाँ पे, दे पुट अ क्रॉस इन बिटवीन। नाउ सेकंड जो चीज हम डिस्कस करने वाले समिंग पॉइंट के बाद में, वो आता है टेक ऑफ पॉइंट। तो भाई टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक ऑफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक ऑफ? यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है? तो टेक ऑफ पॉइंट जो है वो ये है टेक ऑफ पॉइंट। दिस इज अ टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पे अटेंशन, यहां से आया x, यहां से आया x। ओके, अभी ये पॉइंट से अगर मैं एक लाइन बाहर निकाल तो क्या आएगा? मुझे x ही बाहर आएगा, यस और नो। यहां से अगर मैं एक लाइन बाहर निकाल तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे x ही मिलेगा, यस और नो। सेम वे अगर यहाँ पे आया x, तो यहाँ पे x आने के बाद में यहाँ से कौन निकलेगा? यहाँ से x ही बाहर आएगा, यहाँ से भी x बाहर आएगा, यहाँ से भी x बाहर आएगा। तो ये जो पॉइंट बन गया आपको कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज टेक ऑफ पॉइंट। दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज टेक ऑफ पॉइंट। Is it clear to you sir what I'm trying to say? What is takeoff point? In order to have the same signal or variable be an input to more than one block or summing point, a takeoff point is used. Takeoff point कब यूज किया जाता है? अगर मुझे सेम सिग्नल या सेम वेरिएबल अगर मुझे एज ए इनपुट अगर देना है कोई ब्लॉक को या कोई समिंग पॉइंट को, तो मुझे टेक ऑफ पॉइंट का प्रयोग करना पड़ेगा। आई नीड टू यूज अ टेक ऑफ पॉइंट। ओके, टेक ऑफ पॉइंट क्या करता है? टेक ऑफ पॉइंट जो है वो इनपुट सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? अनडिमिनिश्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिमिनिश्ड? आपने पढ़ा होगा केसीएल। केसीएल में आपने क्या पढ़ा? आपने बोला देखो सर ये है I1, ये है I2, तो आप बोलते देखो सर ये होगा I1 प्लस I2। सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि देखो सर ये मेरा X1 है, ये मेरा अगर X है, तो यहाँ पर भी X गया और यहाँ पर भी X आया।
तो ऐसा नहीं बोलने का सर यहाँ पे सपोज 100 है तो यहाँ पे 100 आया तो देखो 50 यहाँ गए 50 आ गए, नो, इट गोज अनडिमिनिश्ड। तो अगर यहाँ से x आया तो वही सेम x ऊपर भी, सेम x इधर भी, सेम x नीचे भी, एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये x है और ये सेम x इधर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इट इज अनडिमिनिश्ड। मुझे यहाँ पे लिखने का x/3 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 ऐसा मैं नहीं लिखने वाला हूँ, इट इज अनडिमिनिश्ड। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, इट इज द मीनिंग ऑफ द टेक ऑफ पॉइंट। नाउ अब दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, दिस परमिट्स द सिग्नल टू प्रोसीड अनअल्टर्ड, कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं किया है, जो x था वो एज इट इज एज x पास हुआ है, x का x/2 या x/3 हमने नहीं किया है, अनअल्टर्ड अनडिमिनिश्ड पास हो रहा है अलोंग सेवरल डिफरेंट पाथ टू सेवरल डेस्टिनेशन। आई होप टेक ऑफ पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, हमने पहले समिंग पॉइंट का डिस्कशन किया था प्रीवियस स्लाइड में, वो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, फिर हमने डिस्कस किया टेक ऑफ पॉइंट का, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। Any question in this prospect, kindly raise your hand and let me know कि सर ये नहीं समझ रहे क्या चल रहा है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से 10 मार्क आप आराम से निकाल सकते हो, और इसको पढ़ने के लिए आपको कोई रट्टा या कोई थ्योरी रटना नहीं है, सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है इसके, वेरी 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 सिंपल। इवन अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन डू दिस, टेक माय चैलेंज। ओके, नाउ अभी जो मैंने आपको कहा भाई ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो 4 चीज को लेके बनता है। पहला चीज है सिग्नल, ऑब्वियसली ना, अगर इनपुट दोगे, इनपुट सिग्नल दोगे तो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, तो सिग्नल कम्स एज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दैट। देन यू हैव सेकंड इज द सिस्टम और द ब्लॉक, कि भाई मुझे सिग्नल किसको देना है, एम्पलीफायर को देना है या डिफरेंशिएटर को देना है या एडर को देना है या मल्टीप्लायर को देना है, वो मेरा बन गया सिस्टम, वो मेरा बन गया ब्लॉक। ओके, like for example, suppose you guys took a picture, ये आपने एक पिक्चर को कैप्चर किया आपके कैमरा से, और पिक्चर कैप्चर करने के बाद में वो पिक्चर को आपने एक ऐप में डाल दिया, ताकि वो ऐप में जाकर पिक्चर को इनहांस कर सको, ब्राइटनेस उसका एडजस्ट करोगे, सैचुरेशन एडजस्ट करोगे, उसका ह्यू एडजस्ट करोगे, तो दैट ऐप एक्ट्स लाइक अ सिस्टम and that image file acts like a signal, and once you process that image in that system, the output is your output signal. Fine, that's the meaning of this. नेक्स्ट हमने देखा समिंग जंक्शन के बारे में, जिसका हमने डिस्कशन किया अभी। ओके, समिंग जंक्शन को जो इस प्रकार का कुछ जंक्शन हमने देखा था कि भाई देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये लिखा मैंने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे मैंने y लिखा, तो फाइनल आउटपुट विल बी x minus y। एंड नेक्स्ट वी हैव सीन इज द पिक ऑफ पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट, और एक वर्ड है पिक ऑफ, ये याद रखिए सर, पिक ऑफ पॉइंट भी टेक ऑफ पॉइंट बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ से अगर x आया और यहाँ से अगर मैं कुछ चीजें मैं टेक आउट करता हूं, तो मुझे यहां पर भी x मिलेगा और मुझे यहां पर भी x ही मिलेगा, अनडिमिनिश्ड, अनऑल्टर्ड। एंड यूजिंग द टेक ऑफ पॉइंट आई कैन पास द सिग्नल टू सेवरल डेस्टिनेशन at several time. Okay, that's the meaning of the pick off point or the take off point. I hope you have understood the basic components of a block diagram. Any query in this scenario, any doubt in this case? Sir, ABCD complete हो गया है। ABCD complete होने के बाद में now can move towards words. ABCD of the block diagram is complete. How to represent a block diagram? Okay, understood? Very good, sir. Now, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, MAC के अंदर एक क्वेश्चन आया था, जिसको देख के बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि सर आपने R of S, C of S को अपने उल्टा पलटा लिखा है, सर आपने को लिखना चाहिए था R of S ऐसा लिखना चाहिए था, C of S ऐसा लिखना चाहिए था, सर आपने ऐसा लिखा है, C of S and R of S. Okay, fine. Now, अब if you pay attention, यहाँ पे अगर आप देखते हो R of S input C of S, जो कि एग्जाम में एक्चुअली ऐसा लिखा गया था, it was a typographical mistake. Sir, just pay attention. What is this? An input. Arrow indicate information flow, arrow indicate message flow, arrow indicate information, arrow indicate flow of information, flow of signal. So yes, this is an input, this is an input, and this is an output. This is my input, this is my output. तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल बात करते हो, अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करता हूँ एज अ होल, कंट्रोल सिस्टम में हमने आज तक 2 सिग्नल देखा। एक हमने देखा इनपुट सिग्नल, फाइन, एक हमने इनपुट सिग्नल देखा। ओके, वन वी हैव सीन इज द इनपुट सिग्नल, इसको मैं कहता हूं ये मेरा इनपुट सिग्नल है, और ये जो है हमारा आउटपुट सिग्नल है। फिर कौन बताए मुझे इनपुट या आउटपुट सिग्नल है? सर, बिकॉज ऑफ द एरो, एरो implicates the signal is going inside the block, that is input. Here arrow implicates that the signal is going outside the block.
So this is my input signal R of S, and this is my output signal C of S. Okay, what is R of S? You may say R of S is a Laplace transform of reference input. What is C of S? It is a Laplace transform of controlled output. But basically, R of S, C of S is an input signal and output signal. Okay. Now coming to system. What is system? तो ये सर मैंने यहाँ पे सिस्टम बना दिया. सिस्टम के अंदर मैंने लिखा G. What is G of S? The G of S is the descriptor. G of S is the name of that block. तो ये ब्लॉक मुझे क्या बताता है कि अगर आप इनपुट दोगे ना R of S, so output will be C of S, which will be equal to G of S multiplied by R of S. That's the meaning of that block. तो मुझे ब्लॉक क्या बताता है? मुझे ब्लॉक बोलता है कि आप जो भी इनपुट दोगे उसको G of S से मल्टीप्लाई करना है, एंड द आउटपुट विल बी G of S मल्टीप्लाइड बाय इनपुट R of S. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम. तो यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे मैंने दोनों सिग्नल का प्रयोग करके दोनों सिग्नल को मैंने जोड़ दिया है, एंड एज अ क्लब आई हैव शोन यू कि सी दिस इज R of S, G of S as a block, and then C of S as the output signal. Is it clear to you? Yes, understood, sir. Now, अब मैंने कहा इनपुट सिग्नल एक से ज्यादा भी हो सकते प्लूरल फॉर्म में. एग्जांपल यहां पे है R1 है, R2 है, R3 है. तो R1 प्लस R2 प्लस एंड R3 इज माइनस. ओके, so C of S will be equal to R1 of S plus R2 of S minus of R3 of S. This is my summing junction. Getting, sir? Next we have is a pick off point, also known as टेक ऑफ पॉइंट, और एक नाम है इसका टेक ऑफ पॉइंट, है ना. टेक ऑफ पॉइंट ये भी देखा था हम लोगों ने. तो R of S इज इनपुट, यहाँ पे चला गया, ये बन गया मेरा टेक ऑफ पॉइंट. आई होप यू आर एबल टू सी, ये मेरा टेक ऑफ पॉइंट है. ये टेक ऑफ पॉइंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने आउटपुट निकाला R of S, यहाँ पे चला गया R of S, यहाँ पे चला गया R of S, एंड यू कैन सी ऑल थ्री आर R of S ओनली, अनअल्टर्ड, अनडिमिनिश्ड. Okay, I hope all the four components of block diagram are clear to you. Any query in this prospect? Any query on this? Any doubt, sir? Signal क्या होता है? System, summing junction, pick off point, all four basic components of a block diagram we have seen and we are trying to understand it. Next, moving forward. Now, sir, अभी आपका काम यहाँ पे शुरू होता है. आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट, बिकॉज मैंने पहले कहा था आपको व्हाट्सएप के ऊपर, इट विल बी अ इंटरैक्टिव सेशन wherein you have to unmute your microphone periodically and answer with the questions. You can even take out your notebook and a pen wherein you will be drawing the diagram on your own, and you can show me by means of your camera. So you can unmute your, you can unmute your microphone, as well as you can open up with the camera and show me the video, like how you have got the output of the same. Sir, हमारे सामने क्वेश्चन आया है x3 equal to a1 x1 plus a2 x2 minus 5. Now what is this function represents? The function मुझे बताता है pink color x3 x1 x2. These are variables, इनपुट वेरिएबल्स x1 x2. तो ये इनपुट वेरिएबल है, ये भी इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, ये आउटपुट वेरिएबल है. और ये जो a1 a2 जो आपको दिख रहा है, दिस a1 a2 आर योर कोएफिशिएंट्स, गेन्स. फाइन, दिस आर कोएफिशिएंट्स और गेन. इसको मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. और ये -5 ये भी एक कोएफिशिएंट या इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हैं. ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पे. Fine. So now can you tell me, sir, how will you represent this entire function? How will you draw this with the help of a block diagram? Block diagram बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है. सिग्नल होना चाहिए, we require a signal. Then we require a system, we require a summing junction, and we require a takeoff point. You can use all 4 or either of the 4, and I want a diagram to be accomplished and completely procured, and show me that diagram. कैसे बनाएगा सर डायग्राम? क्या करोगे आप? एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट द माइक्रोफोन एंड हेल्प आउट विद, बिकॉज़ इट इज इंटरैक्टिव सेशन. सो आई वांट यू टू स्पीक अप अलोंग विद दिस. इफ द मोर you speak up, the more you will enjoy the session. Sir, the individual inputs x1 and x2 will be passed through through a system of gain a1 and a2 respectively. Fantastic. And then they will be provided to a summing junction along with a DC of 5.
and from there we'll get the output of x3. Very good, beta. Very good. Fantastic, beta. Very fantastically you have to try to make it understand to us. Is any other student can help me with this? Whomsoever is active and participative. Yes, yes, yes. कैसे होगा सर? श्रुतिमन ने बिल्कुल सही कहा सर, x1 x2 इनपुट्स है, इसको आप a1 a2 सिस्टम ब्लॉक के थ्रू पास करिए एंड यूज द समिंग जंक्शन, और समिंग जंक्शन से आप प्लस प्लस माइनस दिखा दीजिए एंड इवेंचुअली द फाइनल आउटपुट विल बी x3 as you have rightly told beta. I'll show you how it look like, so just tell me whether you are getting or not. अच्छा, कितने लोगों ने ड्रॉ कर दिया आपके नोटबुक में? Raise your hands. How many of you had drawn in your notebook? Raise your hands. Very good, very good. Many people are raising their hands. Very good. कौस्तुभ घारे, very nice बेटा. जिन्होंने हाथ रेज किया है, see, the more you practice, the more things you will get the confirmation. अभी वो चीज सही है या गलत है उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग. फर्स्ट यू शुड पार्टिसिपेट. मीनिंग इज सेकेंडरी. पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. ओके, चलो सर अभी हम लोग आगे देखते करके. So a1 x1 फाइन, a2 x2 और 5. तो यहां से a1 x1 समिंग जंक्शन को चला गया, यहां से a2 x2 समिंग जंक्शन को चला गया, यहां से -5 समिंग जंक्शन को चला गया, और ये तीनों का आउटपुट मैंने बोला x3. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगेन दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर एज वी एक्सपेक्ट. दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर. आगे बढ़ते हम लोग. ये क्वेश्चन था हमारा. फाइन. श्रुतिमन का बोलना ऐसा था कि सर आप ब्लॉक लीजिए a1, उसको पास करिए x1, तो आपको मिलेगा a1 x1, एंड देन द सेम कैन बी डुप्लीकेटेड फॉर a2 x2 एज वेल, एंड द आउटपुट्स a1 x1, a2 x2 and 5 will be given to summing junction, and this is your correct output, the correct representation. Now kindly raise your hands who has got this as the correct solution. This is the correct solution, the one which I marked as blue. Raise your hands. Raise your hands those who have got this as the correct solution. Very good sir. Many people are raising their hands. तो जिन लोगों को यहां तक समझ गया है, that means that things are there in their favor and they're understanding what is the basic idea of the block diagram representation. Okay, very good sir, very good. Hats off to you. Come on. Now we have another example in front of you. Example number 2. अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है सर. We have plenty amount of time. और भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती रहेगी. ये सेकंड एग्जांपल आपके सामने है. x of n is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 plus an minus 1 xn minus 1. Can you try this right now? Students, you can lower down your hands, and those who are getting this as an answer, raise your hands. I want to see how many students are raising hands now for example number 2. Very good, very good. Some new hands I can see. Kundan Chaudhary, Shrutiman, Fenil, very good. Nikhil, very good beta, fantastic. Krushi Panchal, very good beta. Suruchi, very good, very good. You are in line. इसे समझ में आता है कि आप लोग interested हो and things are in your favor. The things are, the ball is in your court. Very good beta. Hats off to you. This is the solution. The solution is on screen. तो अगर आपका solution match हो गया है तो बहुत बढ़िया. Very, very, very hearty congratulations to you. And students who has not yet got the answer, I hope you have understood what actually we are trying and what we are trying to do. Any student over here who has still not understood can raise his hand. Others can lower down their hands. You can lower down your hands. Any student who has not yet understood, कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, अरे क्या पका रहा है, क्या परेशान कर रहा है, खाना भी नहीं खाया, मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको अभी भी दिक्कत है, नहीं समझ रहा है, raise your hand. I'll be happy to help him out. Okay, come on, let's proceed forward, sir. Now, यहां तक हम लोगों ने देखा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का. अभी कुछ टोपोलॉजीज का बात करने वाले हम लोग. तो इसमें अराउंड 4 टोपोलॉजीज है. तो पहला टोपोलॉजी जो डिस्कस होगा वो कैस्केड के बारे में डिस्कस होगा.
कैस्केड का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे कर दिया है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि भाई रीना मैडम को कुछ आपसे बात करना था, उन्होंने ऑडिटोरियम बुक किया, उन्होंने आपसे बात करना शुरू किया, वो देख के कुछ और कुछ लोग प्रोत्साहित हो गए, कुछ और लोग जुड़ना शुरू हो गए, जिस वजह से वो बाकी के लोगों को आवाज सुनाई नहीं देने लगा। तो एक जन ने कहा कि सर व्हाई डोंट यू मेक वन मोर एम्पलीफायर एंड कनेक्ट इन कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आप देखते हो ये है हमारा ब्लॉक नंबर 1 जिसका नाम है G1 ऑफ S। ओके, अभी ये G1S को आपने यहाँ पे रीना मैडम लगा दिया, R ऑफ S, R स्टैंड फॉर रीना। ओके, तो आप ये रीना मैडम आपने यहाँ पे लगा दिया है R ऑफ S, और इसका आपको आउटपुट आया G1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय R ऑफ S एज यू वर एक्सपेक्टिंग। फाइन, अभी ये जो आपको मिला G1 ऑफ S R ऑफ S, दिस एक्ट्स एज अ इनपुट टू द सेकंड ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 2 का आपने दे दिया, तो आपको मिला G2 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय G1 ऑफ S R ऑफ S। ओके, फिर ये जो आपको मिला यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट आपने दे दिया एज एन इनपुट टू थर्ड ब्लॉक G3 ऑफ S को, तो आपको मिला G3 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S इंटू G1 ऑफ S, और ये पूरा मिलके आपको मिल गया C ऑफ S एज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हो मेरे भाई, तो आपको दिखेगा यहाँ पे G3, G2, G1 ये ऑल आर इंडिविजुअल गेन्स का मल्टीप्लीकेशन। ये G3 आया ब्लॉक नंबर 3 से, G2 आया ब्लॉक नंबर 2 से, G1 है ब्लॉक नंबर 1 से। तो ये तीनों ब्लॉक को आपने आपस में कैस्केड करने से क्या हो गया, व्हेन यू कैस्केड मोर देन वन ब्लॉक, the final output will be the multiplication of the individual gain multiplied by input R of S, and that is your output. So B is what is the block number B? The block B is the reduced block of the above blocks in block number A. Have you understood this or not? What is cascade configuration? तो कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या किया है, यहां पे आपने इंडिविजुअल ब्लॉक्स को लिया है, वो तीनों को कंबाइन कर दिया, और आपने बोला R of S is given to G3 into G2 into G1 and out. Okay, have you understood sir what I'm trying to say? Any question in the cascade configuration? So equivalent transfer function is given by GE of S equal to G3 of S into G2 of S into G1 of S. Any doubt in this prospect? Any doubt in this scenario? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आया मुझे कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन का ओवरऑल इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन? If you have understood with this, let's go with the second topology, that is parallel form. ये पैरेलल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, पे अटेंशन, ये है इनपुट R of S, ये है टेक ऑफ पॉइंट, तो ऑब्वियसली टेक ऑफ पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहां पर भी आएगा R of S और यहां पर भी आएगा R of S. Do you agree with this or not? Yes. अभी ये R of S G1 को चला गया, R of S G2 को चला गया, यहाँ पे आपको मिलेगा G1 of S into R of S. Yes or no? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सर, G2 of S into R of S. किसको चला गया, ये समिंग ब्लॉक को चला गया, समिंग ब्लॉक है, समिंग ब्लॉक का आउटपुट आएगा C of S इक्वल टू G1 of S into R of S plus G2 of S into R of S. G1 of S, R of S plus G2 of S into R of S. And now what you can do, you can take R of S common, and last you will be having as equal to G1 plus G2 multiplied by R of S. This is the equivalent transfer function. I'll show you what I'm trying to say. I hope you have understood till this point. ये देखिए सर, बराबर है, यहाँ पे 3 का एग्जांपल लिया है, R of S है, R of S G1, R of S G2, R of S G3, and then you have, depending upon the sign, plus minus, plus minus, plus minus, this will be my final equivalent transfer function as shown in figure B. Any doubt in this context? धीरे धीरे we are moving from simple to complex things, but I'll try my best to keep the things more simpler, more easy. Any doubt still here? Parallel form क्या चल रहा है? अब तक हमने सिर्फ 2 टोपोलॉजीज देखा, एक हमने कैस्केड देखा और एक हमने पैरेलल देखा. In parallel we have seen the equivalent transfer function is given by plus minus G1 of S plus minus G2 of S plus minus G3 of S.
अंडरस्टूड सर? एनी क्वेश्चन इन दिस प्रोस्पेक्ट कि नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है? Come on, so let's proceed forward with the third topology, feedback form. Feedback form. जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए and can you tell me sir what does this diagram is trying to implicate? ये डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या can you tell me sir what is happening? Because ये डायग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी पढ़ाई किया है. फर्क इतना था वो डायग्राम में जो आपने ड्रॉ किया था आपके ऑफलाइन लेक्चर्स में, ये G हुआ करता था और ये H हुआ करता था. Can you tell me sir ये डायग्राम का क्या आंसर आना चाहिए? Any one of you? G1 upon 1 plus G1 G2. Yes, very good sir. बिल्कुल सही बोला आपने. अगर यहाँ पे अगर बात करते हो, इफ यू रिमेम्बर, ये सेम चीज हमने पढ़ाई किया था. इसका हमने वहां पर लिखा था G अपॉन 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का पे लिखूंगा मैं प्लस, और ये G का G और ये H. फाइन. और इसका हमने शॉर्टकट भी बनाया था. इफ यू रिमेम्बर, शॉर्टकट ये था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये माइनस है यहाँ पे लिखूं मैं प्लस न्यूमरेटर इनटू H. आई होप यू आर अवेयर विद दिस शॉर्टकट. यस और नो? Yes, sir. Okay, very good. चलो फाइन. So can you tell me sir what will be the answer for this now? अभी इसका आंसर क्या होगा अगर मुझे इसका लिखना है? तो इसका मुझे लिखना पड़ेगा G1 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू राइट S. ओके, S implicated it is a in Laplacian domain. यहाँ पे माइनस है तो उल्टा पलटा 1 प्लस G1 of S into G2 of S. Understood sir? Okay. The system is said to have negative feedback if the sign at the summing junction is negative and positive, it is having positive feedback over there. तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा. यहाँ पे प्लस लिखता हूं तो, और अगर यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव फीडबैक. I hope feedback form is clear to you. And it is a closed loop control system. Why closed loop? Because this is your forward path, and my dear friends, this is your feedback path. Okay? And यहाँ से आपने शुरू किया था forward path, और ये आपको हो गया feedback path, और ये पूरा मिलके बन जाता है एक loop. It is known as a loop. It is known as a closed loop. ये पूरा loop बन गया. जहां से आपने शुरू किया आप वहां पे खत्म हो गए. It is known as a closed loop. And what is a loop gain? The loop gain is G1 into G2. That is a loop gain. You should know this. Okay. ये आपका loop है, and this loop is what? Loop gain. Closed loop gain is G1 into G2. Any doubt you have in this context? Any question? Yes, students. Have you understood the feedback form? It is given by G1 upon 1 plus G1 G2. G1 plus 1 plus G1 G2. ये देखिए सर यहाँ पे सेम है. ये सेम डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ किया था लेक्चर नंबर 3 में, आप चेकआउट कर सकते हो. ओके. R of S is input given to input transducer. यहाँ पे आपने लिखा था E of S actuating signal, controller, plant. ये सेम डायग्राम आपने नोटबुक में ड्रॉ किया है. फाइन. नमिता, आर यू देयर? Yes, sir. I hope you remember this. Yes, ये sir. आपके ये नोट्स में है अपने. You can हाँ, check it sir. out. Fine. Okay. So this can be written as G of S. ये G2 G3 जो लिख रहा है आपको G2 G3. ये पूरा G2 G3 को मैंने कंबाइन करके इसको मैंने G of S बोला. ये जो H1 और H2 of S इसको मैंने H of S बोल दिया. और फिर ये पूरे को हम रिड्यूस करके बोलेंगे G of S डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस है यहाँ पे, तो हमने लिखा प्लस माइनस G of S H of S. And this is our shortcut formula. This is our shortcut formula. Is it clear to you, sir? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है. अगर जस्ट look at this, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है. एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है. B. What is this, sir? B. What is B? B is simplified model or canonical form. Simplified model or canonical form. तो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको क्या कहा जाएगा? इसको आज के बाद में इसको क्या बोलने का? सिंप्लीफाइड मॉडल और कैनोनिकल फॉर्म. काइंडली रिपीट विथ मी सर, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज सिंप्लीफाइड मॉडल और कैनोनिकल फॉर्म. एंड व्हाट इज सी? सी इज योर इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन. तो ए जो है वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, बी जो है वो सिंप्लीफाइड मॉडल, ये कैनोनिकल फॉर्म है, और जो सी है वो है इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन. I hope all the three figures are very much clear to you. Just have a look at it. A को फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बोला जाएगा, बी वाले को बोला जाएगा सिंप्लीफाइड मॉडल या फिर कैनोनिकल फॉर्म,
और सी को बोला जाएगा इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड दिस इज द शॉर्टकट वी हैव। यहाँ पे माइनस प्लस है तो हमने क्या लिखा, प्लस माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर इनटू फीडबैक h. Okay, yes sir, understood with feedback form. Next we have another topology. ये हो गए फीडबैक फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगेन ये तो हमने ऑलरेडी देखा ही हमारे ऑनगोइंग लेक्चर्स में, that it is given by closed loop transfer function c of s upon r of s equal to g upon 1 minus plus g of h of s, and transfer function, and the denominator is always the characteristic equation. The denominator of the closed loop is the characteristic equation, the 1 plus minus g of h of s. इसको पूरे को आपने 0 से इक्वेट किया तो आपको ये पूरा मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, डन। नेक्स्ट यू हैव इज a unity feedback system. फाइन, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे आई होप यू आर अवेयर विद दिस कि इसका हम लोग को मिलेगा g अपॉन 1 प्लस g, यस और नो, बिकॉज h इज 1 ना, यहाँ पे h है ही नहीं, यहाँ पे h इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली विल हैव g अपॉन 1 प्लस g, g अपॉन 1 प्लस g। ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। नाउ वी कम टुवर्ड्स रिडक्शन टेक्निक्स, हाउ टू रिड्यूस देम, हाउ टू रिड्यूस अ गिवन ब्लॉक। ओके, नाउ नंबर 1 कैस्केड। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपने, G1, इधर क्या लिखा है आपने, G2। अगर इसको मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, G1 G2। ओके, दैट व्हाट वी हैव सीन। देन अगर पैरेलल में है, पैरेलल में कैसा है कि एक ये है G1, इसको चला गया, यहाँ से सिग्नल आया G2, you go over here, then you have G1 plus G2। फाइन, पैरेलल इज क्लियर टू यू। 1 2 ये दो टोपोलॉजीज भी है और ये दोनों रिडक्शन टेक्निक्स भी है। थर्ड, अभी ये चीज देखिए आप, जस्ट पे अटेंशन, यहाँ पे थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्स होने वाली है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे है गेन G, ठीक है, और यहाँ पर है समिंग ब्लॉक। किधर है समिंग ब्लॉक? समिंग ब्लॉक इज बिफोर, समिंग ब्लॉक इज बिफोर द ब्लॉक, यस और नो, समिंग पॉइंट, जिसको हम समिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग। पे अटेंशन नाउ, ये समिंग पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट जो है आपका समिंग पॉइंट, ये किधर है सर? समिंग पॉइंट इज बिफोर द ब्लॉक, समिंग पॉइंट इज बिफोर द ब्लॉक। मुझे क्या करना है? मुझे समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में लेके जाना है। आई वॉन्ट टू मूव द समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। गेटिंग सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुझे समिंग पॉइंट ब्लॉक के बाद में लेके जाना है। अभी फिलहाल समिंग पॉइंट कहां पर है सर? अभी समिंग पॉइंट जो है वो ब्लॉक के पहले है। मुझे समिंग पॉइंट को ब्लॉक से आगे लेके जाना है, ब्लॉक के बाद में लेके जाना है। कैसे करोगे सर आप? तो समिंग पॉइंट को अगर आपको ब्लॉक के वो साइड लेके जाना है तो मेरा कैसा बनेगा? मुझे हाउ टू आई एम सपोज टू मेक, तो ऑब्वियसली एग्जांपल, सपोज अगर ये आपका गेन है G, तो समिंग पॉइंट जो यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया था उसका यहाँ पे न ड्रॉ करते हुए यू विल बी ड्रॉइंग समिंग पॉइंट ओवर हियर, एज सिंपल एज दैट। फाइन, नहीं, इतना सिंपल नहीं है। समिंग पॉइंट अगर आप उसको बाद में लेके जाते हो तो यहां से जो आपने जो बाहर निकाला माइनस बोल के, जो माइनस मतलब बाहर जो निकाला, यहाँ पे भी आपको G लिखना पड़ेगा इन दिस फॉर्मेट। गेटिंग सर? So whenever you move a summing point after the block, you write G in like this format, in multiplication format, है ना? ये G आपने multiplication format में लिखा है। Understood sir? The summing point after the block you have to multiply. Is it clear to you? Summing point after the block, summing point को आपने ब्लॉक के बाद में लेकर गए, summing point after the block you have to multiply। तो इस सैम को याद रखिए आप। फाइन, अपने क्लास में एक लड़का है सैमुअलसन, डू यू नो सैमुअलसन? डू यू नो सैमुअलसन? फाइन, यस सर। तो उसके नाम को याद रखने का, सैम। अब मुझे सैम करना है। समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक आई हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपल। ओके, नाउ अभी समिंग पॉइंट किधर है सर? वेयर इज समिंग पॉइंट? समिंग पॉइंट इज नाउ आफ्टर द ब्लॉक बाय डिफॉल्ट। ब्लॉक के बाद में समिंग पॉइंट है। अब मुझे समिंग पॉइंट को कहां लेके जाना है? मुझे समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पहले लेके जाना है। अगर मुझे समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पहले लेके जाना है तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/G। गेटिंग सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सिंपल, पे अटेंशन ऑन द कैमरा। ब्लॉक इधर है, ठीक है,
समिंग पॉइंट किधर है? ब्लॉक के पहले। अगर समिंग पॉइंट ब्लॉक के पहले है, अगर समिंग पॉइंट आप ब्लॉक के बाद में लेके जाते हो, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है? जी लिखा है, तो जो भी ब्लॉक के अंदर लिखा है उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में डाल देने का। अगर यहाँ पे जी था, यहाँ पे जी था, तो मैंने यहाँ पे जी लिखा। अगर यहाँ पे एच होता ना, एच, यहाँ पर मैं एच लिखता। अगर समिंग पॉइंट को मैं ब्लॉक के पहले लेके जाता हूँ, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, आई हैव टू डिवाइड, आई हैव टू राइट 1 अपॉन जी। अगर यहाँ पे होता है एच, यहाँ पे मैं लिखता 1 अपॉन एच। यहाँ पे अगर होता G1 G2, यहाँ पे मैं लिखता 1 अपॉन G1 G2। आई हैव टू डिवाइड व्हेन आई टेक समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। कम ऑन फास्ट, क्विकली, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, मल्टीप्लाई या डिवाइड? समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, मल्टीप्लाई। सैम को याद रखिए, सैम। anyone who is a friend of Sam, anyone who is a friend of Sam, give my regards to Sam. Okay, give my regards to Sam. Tell him that Najib sir was missing you. Okay, so what is Sam? Sam is like summing point after the block multiply, summing point after the block multiply. अभी एक चीज अगर आपने याद रख लिया भाई, summing point after the block multiply, then obviously you'll remember if it is going before the block I have to divide. Okay, इसे true है तो false, yes है तो no, तो after the block multiply, तो before the block divide. It is simple. Okay, तो आप इतना, अब सैम को याद रखिए, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा अगर बिफोर द ब्लॉक है तो डिवाइड करना है, बिफोर द ब्लॉक है तो मुझे डिवाइड करना है। फाइन। हिबा फातिमा, एनी क्वेश्चन बेटा? यू आर रेजिंग योर हैंड। Sir, I'm not understanding the logic why we are like putting the block again. ओके फाइन, आई विल कम टू इट। सुनो बेटा, ये है आपका समिंग पॉइंट, ठीक है, ये है आपका ब्लॉक। अगर हमने समिंग पॉइंट को ब्लॉक के राइट में लेके गए, ब्लॉक के बाद में लेके गए, तो जो भी ब्लॉक में लिखा होता है ना वो मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे लिखा है एच, यहाँ पे लिखा है एच, समिंग पॉइंट इधर है, मुझे समिंग पॉइंट कहाँ लेके जाना है? समिंग पॉइंट मुझे राइट में लेके जाना है। तो अगर मैं समिंग पॉइंट को उठा के अगर मैं यहाँ रखता हूं तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एच, मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा एच। अगर समिंग पॉइंट को मैं ब्लॉक के पहले लेके जाता हूं, समिंग पॉइंट गोज बिफोर द ब्लॉक। अभी समिंग पॉइंट किधर है हिबा? समिंग पॉइंट इज आफ्टर द ब्लॉक, है ना, बाय डिफॉल्ट समिंग पॉइंट इज आफ्टर द ब्लॉक। आई हैव टू मूव द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। इफ द समिंग पॉइंट हैज टू बी मूव्ड बिफोर द ब्लॉक, एट दैट टाइम आई हैव टू डिवाइड। किधर है ब्लॉक? क्या, कौन सा ब्लॉक की? जी। कौन से ब्लॉक को आप क्रॉस करने वाले हो? आप जी को क्रॉस करने वाले हो। तो जो ब्लॉक को क्रॉस करोगे ना, वो ब्लॉक का वैल्यू आपको डिवाइड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन जी। हैव यू अंडरस्टूड बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. ओके, इट इज सिंपल। समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, अगर मुझे समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में लेके जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे समिंग पॉइंट ब्लॉक के पहले लेके जाना है तो मुझे डिवाइड करना है। समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, सैम, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक डिवाइड, आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, बिफोर द ब्लॉक डिवाइड। ओके, जस्ट रिमेंबर सैम, आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, तो डिवाइड वाला ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। बैठ, बिफोर डिवाइड है, आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई। नाउ अभी ये वाला देखिए आप, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मूविंग अ पिक ऑफ पॉइंट, अब कौन सा है सर? पे अटेंशन नाउ। पिक ऑफ पॉइंट किधर है? पिक ऑफ पॉइंट, ये देखिए सर, पिक ऑफ पॉइंट ये है पिक ऑफ पॉइंट। ये पिक ऑफ पॉइंट किधर है? ब्लॉक के पहले है। इसको आपको ब्लॉक के बाद में लेके जाना है, ब्लॉक के बाद में लेके जाना है। तो अगर मुझे पिक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद में लेके जाना है तो आई हैव टू डिवाइड। वहां पे आपने उल्टा किया था, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई सैम। यहाँ पे क्या है? पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, उल्टा पलटा। फाइन, याद हो गया चारों? समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक डिवाइड, पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड, पिक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक मल्टीप्लाई। फाइन, अभी फिलहाल आप क्या याद रखोगे? आप सिर्फ इसको याद रखिए, सैम और पैड को। ओके, सैम कहां से? हाँ, सैमुअलसन डिसूजा। सैम, सैमिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई, पैड, पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड। If you remember these two, automatically you'll be able to remember the allied values SP, SB, and P. ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाएगा। भाई आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई था
ऑब्वियसली बिफोर द ब्लॉक मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने आफ्टर ब्लॉक डिवाइड किया तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है. इट इज सिंपल. एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ ओवर हियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सर? यहाँ पर क्या चल रहा है? एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके चलो, I'll try to make you understand more better way. क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये देखिए, आप इधर से आया x, कौन आया यहाँ से? x आया. ये x आके क्या होगा? x कुछ x जो है x इधर चला जाएगा और वही x यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये कौन सा पॉइंट है सर? पिक ऑफ पॉइंट है. पिक ऑफ पॉइंट की खासियत है कि वो एज इट इज वैल्यू को पास करता है. तो अगर x इधर आया, वही x इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. ठीक है, फाइन. ये x यहाँ पर आके क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे मुझे मिलेगा g ऑफ x. व्हाट इज द आउटपुट बेटा? द आउटपुट इज व्हाट? g ऑफ x. यस और नो? इधर आउटपुट क्या आया आपका? x आया. तो पिक ऑफ पॉइंट का आउटपुट है x और इसका आउटपुट है g ऑफ x. ओके, gx आ गया यहाँ पे. अब पे अटेंशन हो रही है. यहाँ से कौन आया? x आया. व्हाट इज द आउटपुट? gx. यहाँ से कौन आया? gx. बराबर ना, gx ही बाहर निकला ना, पिक ऑफ पॉइंट ही बेटा है. तो gx इधर भी गया, इधर भी गया. gx. बट क्या मुझे यहाँ पे gx चाहिए? नहीं, मुझे पिक ऑफ पॉइंट का आउटपुट चाहिए x. इसीलिए यहाँ पर मैं 1/g करता हूं, ताकि ये g कैंसिल हो जाए और मेरे पास में आंसर आए ओनली x. समझा सर आपको क्यों डिवाइड किया हम लोगों ने? बिकॉज मेरा एम क्या था? आई वॉन्ट ओनली x एज एन आउटपुट ऑफ माई पिक ऑफ पॉइंट. आई डोंट वॉन्ट gx. इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं. इसलिए पिक ऑफ पॉइंट को अगर ब्लॉक के वो साइड लेकर गया तो डिवाइड किया जाता है. इट इज लाइक एडजस्टमेंट. If I make pick off point to go after the block, I have to divide so that the eventual output, in a nutshell, in a conclusion, the output that should remain same after operation. Getting or not what I'm trying to say, sir? Similarly, अगर आप समिंग पॉइंट का भी देखते हो, समिंग पॉइंट में कोई देखने को मिलेगा यहाँ पे. जैसे समिंग पॉइंट यहाँ पे आपने निकाला, ये यहाँ पे माइनस इधर आ गया, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद में that should be balanced. The output should be same, even if you try to make it other way around. तो यहाँ पे आपने देखा सैम, that is summing point after the block you multiply, and in case of pick off point after the block you have to divide. Now how to remember this? तो समिंग पॉइंट का मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था कि आप सैमुएल्सन को याद रखिए. क्या है उसको मैं सैम बोलता हूँ, सैम आपके माइंड में रहेगा. समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक मल्टीप्लाई. नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस पैड? अक्षय कुमार का एक मूवी आया था पैडमैन. पता है आपको ये पैडमैन अक्षय कुमार का मूवी आया था? So with this you can remember, हाँ भाई, पैडमैन written directed by Najib Ghatte, this day 15 November. It has to be 19, but ultimately because of less time I couldn't change the date. But it was on 15 जो हमने स्टार्ट में डिसाइड किया था. So with this you can remember, like हाँ भाई पैडमैन, ये यहाँ पे सैमुएल्सन का सैम. So with this you can remember कि भाई सैम और पैड क्या होता है करके. Okay. Now रिडक्शन टेक्निक्स. अभी 7th पॉइंट आप देखिए. तो अब तक आपने कितना पॉइंट्स देखा? जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. ये फर्स्ट पॉइंट था पे कैस्केड का था, है ना. सेकंड वाज अबाउट पैरेलल. एनी डाउट ओवर हियर इन कैस्केड एंड पैरेलल? थर्ड वाज समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक. यहाँ पे तीसरा चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है. पांचवा छठा पॉइंट जो है हमारा पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर पिक ऑफ पॉइंट बिफोर का है. एंड नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स 7th पॉइंट, एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप. अगेन ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस का उल्टा माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. अगर यहाँ पे फीडबैक की जगह पे अगर यूनिटी फीडबैक है h equal to 1, so I'll be having 1 minus plus g. h is missing because h is 1 over here. And obviously in order to understand in more better way we were having that shortcut. क्या शॉर्टकट था सर? मुझे पता है शॉर्टकट क्या था. What was the shortcut for this? To remember this, numerator upon denominator minus plus numerator into h. ये भी हमारा शॉर्टकट था. Okay. Now coming to 8, swap two neighboring summing points. एक है यहाँ पे a माइनस, ये आया b प्लस माइनस. स्वैपिंग करना बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको जुगाड़ नहीं करना है. आज एट इज खाली को स्वैपिंग करना है आपको. तो ये b जो था इसको मैंने यहाँ लेकर आया प्लस माइनस करके, और जो a था उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे. इसमें कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज समिंग स्वैपिंग हो रहा है यहाँ पे. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल हियर ऑन टिल 8th रिडक्शन टेक्निक? Have you understood all 8 reduction technique? Any query over here? Any doubt till this point? Hiba, any doubt? No sir. Okay, चलेगा. चलो, अभी जितना भी आप लोगों ने देखा
है ना, लाइक कैस्केड कॉम्बिनेशन था, पैरेलल था, फिर फॉरवर्ड, फिर आई मीन टू से फीडबैक पाथ एलिमिनेशन था, देन फिर हम लोगों ने देखा अबाउट समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, पिक ऑफ पॉइंट, स्वैपिंग नेबर, ऑल I have put in this tabular format for my better perusal, otherwise it is not required. ना summing point का देखा, summing point after beyond that what we have seen. Now we come towards the end of part 1 of the presentation. मैंने पहले कहा था आपको कि सर मुझे 3 घंटे का स्लॉट चाहिए था, ओके तो 3 घंटे का स्लॉट इसलिए बोला गया था so that स्टार्टिंग का 1 घंटा I'll be explaining you block diagram representation, block diagram reduction techniques, okay. Next 1 hour I require for block diagram reduction problems, okay, and last 1 hour, super hour, I require for signal flow graph. That signal flow graph we won't be doing today because we don't have time, and anyways we are restricting our session till 5, so I have only 1 more hour, right, from 4 to 5. तो वहां पे केवल ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रॉब्लम का डिस्कशन होने वाला है. तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के पहले गाइस आई वांट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड that I hope you have understood what is a block diagram, what are the techniques of reducing the block diagram so that I can have a मोटू वाला ब्लॉक डायग्राम to पतलू वाला ब्लॉक डायग्राम. बेसिकली मुझे यहाँ पे सिर्फ मोटू मतलू खेलना है मुझे यहाँ पे कि मुझे एक मोटा सा ब्लॉक डायग्राम दिया जाएगा और ये मोटे वाले ब्लॉक डायग्राम को मुझे टेक्निक अप्लाई करके उसको मुझे पतला 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 करते जाना है. कितना पतला करूंगा सर मैं? I'll come to the standard or canonical form. I hope you remember what I'm trying to say. जो B वाला था ना, do you remember this B standard और canonical form? मुझे वहां तक लाके छोड़ना है, ओके या फिर मैं डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशन लेकर आऊं कि ये मेरा फाइनल इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है. आई होप थिंग्स आर वेरी प्रीटी क्लियर टू यू एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है 10 मार्क का, जो आपको मैंने कहा, दैट क्वेश्चन विल बी ओनली अडहियरिंग टू ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रॉब्लम्स. आपको बड़ा मोटू वाला ब्लॉक डायग्राम दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम and obtain the equivalent transfer function. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क के लिए. अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं रहा, पेपर में डायरेक्ट खड़े हो जाने का और डायरेक्ट बोलने का दिस इज नॉट अ पेपर कंट्रोल सिस्टम, आई एम लीविंग द पेपर, दिस पेपर विल बी शॉर्ट. If such kind of question is not there in your exam paper, directly raise from your seat and tell that invigilator this paper does not belong to control system. Short question going to come adhering to block diagram reduction problem. Okay, let's start with question number 1. Let's start with question number 1 कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या मोटू पतलू करने वाले हैं. ये आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है. पहला क्वेश्चन है, शायद देख के थोड़ा डर लगता हो, कह रहे भाई इतना बड़ा क्या बना दिया, मकड़ी का जाला है, इसको क्या करना है. कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है. जो हमने टेक्निक्स अडॉप्ट किया है, जो टेक्निक्स हमने सीखा है ये 1 घंटे में, कैस्केड, पैरेलल, फीडबैक, एलिमिनेटिंग द फीडबैक को लूप, देन समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक सैम, देन पैड, पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड. बस ये शॉर्टकट्स को मैं यूज करने वाला हूं और ऐसा करते 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 मैं इसको ब्लॉक को पूरा मोटे ब्लॉक को पतले में लेकर आकर उसका फाइनल आंसर भी देने वाला हूं. आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. ओके, नाउ how to start with the block diagram reduction. How to start with the block diagram reduction. The moment you see the block diagram reduction वाला problem, don't get afraid कि अरे ये क्या आ गया मकड़ी का जाला मेरे सामने. कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इजी है. 10 मार्क मेरे पॉकेट में आराम से आने वाला है, हंसते हंसते आने वाला है. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि उसमें कौन सा कंपोनेंट्स अवेलेबल है. कंपोनेंट्स बोले तो ये समिंग ब्लॉक है, ये समिंग ब्लॉक है, ये सिस्टम का ब्लॉक है, ये समिंग ब्लॉक है, ये समिंग ब्लॉक है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, पिक ऑफ पॉइंट है, ये समिंग, ये सिस्टम का, ये सिस्टम ब्लॉक है, ये भी टेक ऑफ पॉइंट है, ये इनपुट है R, ये आउटपुट है C, ये फॉरवर्ड पाथ है, ये फीडबैक पाथ है, ये फीडबैक पाथ है, यूनिटी गेन H = 1, ये भी फीडबैक पाथ है H1. I have identified all the components. Step number 1. Is it clear to you? पहले जान तो लो भाई मकड़ी के जाले में क्या क्या है, पहले वो जान लेने का भाई ये है, ये वो है, ये वो है, ठीक है. ओके, I have understood. Just try to get acquainted with the problem. Try to be familiar with the problem. कि हाँ भाई ये राजू है,
ये मजनू है, ये मंजू है, ये अनुज है, ये नमिता है, ये देवांश है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि भाई कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन कैरेक्टर्स है। चलो समझ गया मैं यहाँ तक, अंडरस्टूड। नाउ अभी आता है मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो है, मैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एक का पत्ता फेंकने, ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला हूं मैं। एक ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक ये है, जो भी आपका समिंग पॉइंट है, सुनिए ध्यान से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सर आपने ये देखा होगा क्या, ये वाला ऐसा कुछ डायग्राम। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव सीन सच काइंड ऑफ डायग्राम। काय का डायग्राम बनाया सर मैंने? फीडबैक लूप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे फटाफट बताओ कि ये ब्लॉक्स कौन से हैं। ये कौन सा ब्लॉक है? ये ब्लॉक का नाम जलेबी बाई, ब्लॉक का नाम समिंग पॉइंट, बराबर? यस सर। ये ब्लॉक का नाम, इसका नाम पिक ऑफ पॉइंट, इसका नाम टेक ऑफ पॉइंट। वेरी गुड, फाइन। ये कौन है? G1 है, ये G2 है, और यहां पे आपने बना दिया फीडबैक वाला। टेल मी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक? G1 by G1 G2। वेरी गुड बेटा, क्या बोला आपने कुंदन, क्या बोला? G1 अपॉन 1 प्लस G1 G2। क्यों बोला आपने? बिकॉज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज ये हम लोगों ने पढ़ा है सर, कंट्रोल सिस्टम का जो क्लोज लूप पाथ है ऑलरेडी वी आर लर्निंग राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स। ये लेक्चर कब से हम लोग अगस्त महीने में 22 अगस्त से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, और 22 अगस्त से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। हमने 24 तारीख को हमको नजीब सर ने पढ़ाया था कि भाई ये है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मुझे अगर लिखना है CLTF, it will be simply G1 upon 1 minus plus G1H, अगर ये H है तो, है ना? ये पता है हम लोगों को, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, हमारे लिए नया नहीं है। बस अब मैं यही लॉजिक यूज करने वाला हूं। क्या लॉजिक यूज करूंगा? जो भी समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट SP, उसको लेफ्ट में लेके जाने का। जो भी समिंग पॉइंट है उसको आप लेफ्ट में लेके जाइए। जितना भी टेक ऑफ पॉइंट्स है, ये टेक ऑफ पॉइंट इधर एक दिख रहा है आपको, टेक ऑफ पॉइंट, ये एक टेक ऑफ पॉइंट आपको दिख रही है। जितने भी टेक ऑफ पॉइंट्स है सबको राइट में लेके जाइए। जितना भी टेक ऑफ पॉइंट्स है TP, उसको राइट में लेके जाइए। क्या बोला सर मैंने आपको? समिंग पॉइंट्स लेफ्ट, टेक ऑफ पॉइंट राइट। जितना भी समिंग पॉइंट लेफ्ट में, जितना भी टेक ऑफ पॉइंट राइट में, सो दैट अल्टीमेटली माय मकड़ी का जाला विल बी लुकिंग लाइक दिस। It will start resembling the diagram which I am very much aware right from 24th of August. 24 अगस्त से जो मैं डायग्राम देखते आ रहा हूं, वो डायग्राम से मिलता जुलता डायग्राम बन जाएगा अगर मैं सब समिंग पॉइंट को लेफ्ट में लेके चला गया, सब टेक ऑफ पॉइंट को राइट में लेके चला गया। ये मेरा लॉजिक रहने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक सर? हैव यू अंडरस्टूड द ब्रह्मास्त्र? ये मेरा ट्रम्प कार्ड है सर। ये मकड़ी के जाला को अगर को सॉल्व करना है तो ये ट्रम्प कार्ड को आपको वापरना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस ट्रम्प कार्ड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। इज इट क्लियर टू यू सर? एनी डाउट? नो सर। मेरा लॉजिक यही रहने वाला है, जितना भी समिंग पॉइंट्स है सबको लेफ्ट में, जितना भी टेक ऑफ पॉइंट्स है उनको राइट में। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके कि भाई कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सर नाउ हेल्प मी आउट। समिंग पॉइंट्स किधर किधर है सर? समिंग पॉइंट एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। जितना भी समिंग पॉइंट्स है उसको मुझे लेफ्ट में लेके जाना है। तो सर मुझे बताओ, ये समिंग पॉइंट कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम विद द समिंग पॉइंट? नो, नॉट एट ऑल। एनी प्रॉब्लम विद द समिंग पॉइंट? नो सर। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द लेफ्ट। लेकिन साला ये कमीना है जो बीच में आ गया है। आई डोंट वांट द समिंग पॉइंट टू बी इन बिटवीन। ये समिंग पॉइंट को मुझे लेफ्ट में लेके जाना है। चलो मुझे बताओ आप क्या करोगे? अभी समिंग पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाना है। समिंग पॉइंट शुड गो इन द लेफ्ट। व्हाट आई एम सपोज टू डू? दिस समिंग पॉइंट इज राइट नाउ आफ्टर G1। यस और नो? G1 के बाद में है ये समिंग पॉइंट। ये समिंग पॉइंट को उठा के मुझे यहां लेके जाना है।
अगर मुझे समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हिबा फातिमा बताओ। समिंग पॉइंट हैज टू गो बिफोर द ब्लॉक। So then we have to put 1 by G1. Divide ना, divide. Yes. Summing point after the block multiply. Samuelson D'Souza, Sam. Summing point after the block divide. Sorry, summing point after the block multiply. Sam. Summing point after the block multiply. सर यहाँ पे मुझे summing point before the block करना है तो divide करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करूं? मैं किसको क्रॉस कर रहा हूं? मैं किसके ऊपर से जाने वाला हूं? सर मैं जीवन के ऊपर से जाने वाला हूं, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 अपॉन G1। यस और नो? 1 अपॉन G1 यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये H2 और ये 1 अपॉन G1 कैस्केड में आ जाएंगे। यस और नो? ये 1 अपॉन G1 और ये H2 कैस्केड में आ जाएंगे। कैस्केड में आने पर क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा मुझे? H2 अपॉन G1 मिलेगा मुझे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? H2 upon G1 कैसे आएगा? Any doubt over here? No, sir. चलो, No, sir. ओके, नहीं समझा है कोई दिक्कत नहीं है। I'll explain you step by step. पीपीटी बहुत कड़क पीपीटी बना हुआ है, you'll enjoy with this पीपीटी। ये देखिए सर, बराबर है? ऐसा था, चला गया लेफ्ट में लेके, ये देखो सीधा एनिमेशन, ये इधर था, यहाँ पर था ये, इसको अपन ने सरका के यहाँ लेकर आया, जैसे इसको मैंने यहाँ पे लेकर आया, समिंग पॉइंट उठ के लेफ्ट में आ गया, और ये जो G1 को जो मैंने क्रॉस किया उसको मैंने डिवाइड में लिखा, और ये हो गया H2 upon G1। अंडरस्टूड विद दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? यस और नो? रेज योर हैंड्स। Yes. Anyone who has not yet understood? Anyone who has not yet understood? Unmute the microphone now itself and ask me कि सर नहीं समझा क्या पढ़ा रहे हो? Anyone who has not yet understood? Any person who is not yet understood, सर नहीं समझ रहे क्या चल रहा है। चलो, जिनको समझा है वो मुझे बता सकता है कि अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र को याद रखे, ट्रम्प कार्ड भूलना नहीं है सर। ट्रम्प कार्ड मेरा अभी भी वही है, समिंग पॉइंट शुड गो इन लेफ्ट एंड टेक ऑफ पॉइंट शुड गो इन राइट। ये मेरा सर G2 G3 के बीच वाला टेक ऑफ पॉइंट को C के पास लाना है। फैंटास्टिक बेटा, फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ टू यू बेटा, हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल सही बोला सर। ये कौन कमीना बीच में आ गया सर? इसको हटा के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ये है आपका टेक ऑफ पॉइंट और ये बीच में आके अननेसेसरी अड़चन बन रहा है। कबाब में हड्डी है, कबाब में हड्डी को उठा के बाहर फेंक दीजिए। कैसे बाहर फेंकूंगा सर इसको? मैं कैसे बाहर फेंकू सर? मैं हिबा फातिमा, टेल मी फास्ट, कैसे बाहर फेंकेंगे? Denominator. सर पिक ऑफ पॉइंट शुड गो आफ्टर द ब्लॉक। पिक ऑफ पॉइंट शुड गो आफ्टर द ब्लॉक। पैड, इसका आ गया पैडमैन, अक्षय कुमार का पैडमैन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पैडमैन अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा, अक्षय कुमार को बुलाना पड़ेगा, बोलने का भाई अभी इसको तो यहाँ ले ले, तो सर क्या बन जाएगा फिर? व्हाट विल हैपन? पिक ऑफ पॉइंट वहां चला गया, पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा? H1 by G। H1 अपॉन G3। G3। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, वेरी गुड सर। सर थोड़ा और बता सकते हैं इसके आगे क्या होगा? पिक ऑफ पॉइंट तो चला गया, वो तो चला गया। कबाब में जो हड्डी थी वो हड्डी उठा के फेंक दिया आपने, कोई पूरा कबाब में। G1 G2 G3। क्या बात है सर, वेरी गुड कुंदन बेटा, आई अप्रिशिएट दिस कुंदन। अब ये हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3। क्या बात है सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर। देखते सर क्या होता है जैसा आपने कहा। ये देखिए सर, ये G1 G2 था, ये G1 G2 था यहाँ पे, इसको अपन ने कंबाइन करके ये बन गया, देखो ये ऐसे बन गया, G1 G2 कंबाइन, G1 G2 कंबाइन। एंड देन जैसा हिबा फातिमा ने बोला कि भाई सर पिक ऑफ पॉइंट जो है कबाब में जो हड्डी उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, तो इसको अब मैं बाहर फेंकने वाला हूँ। ओके, एक मिनट, इसने यहाँ पे और एक लॉजिक लगाया, पहले ये भी देखिए आप लॉजिक। ये तो समिंग पॉइंट्स है, समिंग पॉइंट को स्वैप करना है। हाउ टू स्वैप द समिंग पॉइंट्स? हाउ टू स्वैप द समिंग पॉइंट? हाउ टू स्वैप द समिंग पॉइंट? सिंपल, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, सिंपली से करना है। देखिए सर सिंपल, ये देखिए सिंपल, ये प्लस माइनस था, वहां जाके प्लस माइनस इधर आ गए, प्लस प्लस यहाँ आ गया। क्यों ऐसा किया? उसका रीजन था क्योंकि उसको ये जो था ये इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करोगे सर आप इसको? कैसे रिड्यूस करोगे? फीडबैक का फॉर्मूला लगा। बोलो बोलो, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। G1 G2 अपॉन 1 माइनस G1 G2 अपॉन 1, यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस G1 G2 H1। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वही क्या रहेगा उसमें। ये देखिए परफेक्ट मैच हो गया, ठीक है।
अभी क्या होगा, G3 इधर था, ये G3 है, ये G3 इसके कैस्केड में आ जाएगा, ये ऐसा हो गया, यस और नो, अग्रीड। अभी क्या Yes, करने का, अब क्या करने का, अभी क्या करने का? सर एक और फीडबैक लूप मिल गया। वेरी गुड, कौन सा वाला आप दिखा सकते हो मुझे? ये रेड बॉक्स वाला एंड H2/G1 वाला। यस, वेरी गुड सर, ये वाला, यस और नो, बोलो सर, कौन मुझे इसका आंसर बताएगा? ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर और ये है h। टेल मी व्हाट इज न्यूमरेटर, फॉर्मूला क्या आपका? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर इनटू h। प्लस नहीं, क्या आएगा यहाँ पे? हाँ प्लस, बराबर, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो ये बन गया प्लस। व्हाट इज न्यूमरेटर नाउ? व्हाट इज न्यूमरेटर? G1, G2, G3 G2, G3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज डिनोमिनेटर? 1 माइनस G1, G2, H1 हो गया, प्लस प्लस व्हाट इज न्यूमरेटर? G1, G2, G3 व्हाट इज H? H क्या है? व्हाट इज H? H2/G1 G1, H2 अपॉन G1, G1 G1 टाटा बाय बाय, क्या बचा आपके हाथ में? G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2। यस और नो, चेक करो। फाइन, डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए सर, बराबर है, ये अपने को G1 G2 G3 1 माइनस G1 G2 H1 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2 G2 G3 H2। देखो G2 G3 G1 G1 कैंसिल हो गया ना, ये बच गया। नाउ अभी क्या करने का, आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? सर Yes, यूनिटी good. फिट। Very good. Unity feedback. Correct, beta. Unity feedback. So you have G1, G2, G3. Acha, now how to solve this? Pay attention now. This is my numerator, denominator. Formula: numerator upon denominator minus either plus numerator into h. What is h? H is 1. H is 1. तो h लिखने की जरूरत ही नहीं है। So what is numerator? G1, G2, G3 divided by 1 minus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3. Yes or no? Agreed or understood with this? ये देखिए, how many of you have understood this? Raise your hands. How many of you have understood this? Raise your hands. Very good. I can see 18 students have raised their hands so far. Very good. 20 हो गया, 21, क्या बात है, फिगर बढ़ रहा है भाई, आंकड़े बढ़ रहे हैं। 22 हो गया, 23, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। What about others? This is the block diagram reduction technique. ये देखिए सर, कितना बड़ा मकड़ी का जाला था, मोटू। ये था मकड़ी का जाला, जिसको आपने कम करते 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 आप यहां पर आ गए। Have you understood sir? Block diagram reduction problem. स्टार्टिंग में देखिए थोड़ा डर लगा रहा है कि अरे यार इतना बड़ा है ये, किसको कैसे करोगे आप? कुछ नहीं है, होता है मोटा, वो मोटे को पतला 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 करते जाना है। इसको मैं मोटू पतलू बोलता हूं मैं, ठीक है? आप लोगों में से कितने लोगों ने मोटू पतलू कार्टून देखा है? come on, bring that child in from your heart outside. कितने लोगों ने देखा है मोटू पतलू? I also raise my hand because I was in love with this cartoon. Very good, very good. I can see Nikhil Binar has raised his hand. तो ये मोटू पतलू ही करना है बेटा, अपने को कुछ भी नहीं है। निधि सामन, साहिल लाले, श्रुति गवन, वेरी गुड। अपने अंदर जो बच्चा है वो बच्चे को जिंदा रखिए। That is the reason that they messaged you Happy Children's Day. Be a child, enjoy with that child. Okay, now, तो ये था वो बड़ा मोटू वाला ब्लॉक डायग्राम।
जिसको हम धीरे धीरे छोटा छोटा करते 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 हम यहां तक आ जाए आगे, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, सेकंड प्रॉब्लम। चलो अभी फटाफट अपना स्पीड बढ़ना चाहिए। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 2, एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। हम यहां तक पहुंच गए थे, बराबर है, वी हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट, और यहां पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देखो भाई ये है आपका टेक ऑफ पॉइंट, इसको उठा के अब मैं यहां फेंक दूंगा, फिर G1 G2 G3 जो एक साथ कंबाइन हो जाएगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बाय द मोमेंट आई वेंट टू सेकंड स्लाइड, वी फाउंड क्या ये तो ऐसा हो गया, ये क्या किया आपने? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, अल्टीमेटली योर आंसर विल बी सेम। ओके, तो डोंट बी अंडर प्रिजम्पशन के सर नजीब सर तो आप तो बोल रहे थे भाई टेक ऑफ पॉइंट को मैं यहां लेके चले जाऊंगा, फिर G1 G2 G3 कंबाइन हो जाएगा। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, अल्टीमेटली योर आंसर विल बी सेम, या यू कैन फॉलो दिस पाथ एज वेल। इसने पहले ये किया, बाद में फीडबैक करके इसको ज्वाइन किया, आप वैसे भी कर सकते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनी क्वेश्चन? You can follow any procedure, any method, ultimately we should get this as the final answer. So don't think कि सर हमने तो ऐसा सोचा था पिक ऑफ पॉइंट को राइट में लेके चले जाएंगे, सर वो तो स्टेप आया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टेप आप करके भी कर सकते हो, ultimately you'll get the same answer only. Come on, let's try with the second question now. जिन लोगों को अभी भी एग्जाम्पल 1 नहीं समझा है, डोंट वरी सर, यू विल अंडरस्टैंड इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल 2, 3। 2-3 एग्जाम्पल में जो आपके डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके। फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4 ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट डांसिंग, कह रहे सर अभी तो बैठ गया माइंड में क्या करना है। डोंट वरी सर, हैव सम पेशेंस, बी कंसिस्टेंट, बी स्टेडी एंड स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जाम्पल। क्या कैसे करना है सर? टेल मी सर, व्हाट इज द स्टेप? स्टेप नंबर 1 क्या था? डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, फर्स्ट ट्राई टू गेट अक्वेंटेड कि भाई हाँ ये समिंग पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है, ये कौन है, हु इज दिस, सिस्टम और द ब्लॉक, सिस्टम और द ब्लॉक। द मोमेंट यू से कि सिस्टम और द ब्लॉक, सिस्टम द ब्लॉक, अरे वाह ये तो डायरेक्ट कैस्केड है, देख G1 G4 हो जाएगा, ये बन गया फीडबैक। ओके, G2 G3 ये कौन है? G2 G3 क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्म है? पैरेलल। क्या बात है सर, G2 प्लस G3, तो G2 प्लस G3 पैरेलल ये हो जाएगा। यहाँ पे जो फीडबैक बने तो ये दोनों कैस्केड में हो सकता है, गेटिंग और नॉट? इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, ये दोनों कैस्केड में ना सर? यस सर, ये दोनों कैस्केड में हो जाएगा, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों कैस्केड में, और फिर ये होने के बाद में ये भाई फीडबैक H2 वाला, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अंडरस्टूड और नॉट सर? प्रॉब्लम इज सॉल्व। यस सर। चलो स्टार्ट। G1 G4 कैस्केड कर दिया, फिर G2 G3 जो पैरेलल में था उसको G2 प्लस G3 कर दिया। ये देखिए सर, G1 G4 कैस्केड में आ गया और G2 प्लस G3 हो गया। फिर ये दोनों जो था इसको अब मैंने ऐसा लिखा, यस और नो, फाइन, खत्म, ओवर, डन, एग्जाम्पल इज फिनिश। सर मैं यहां तक आगे क्यों रुक रहा हूं? मैं व्हाई आई एम स्टॉपिंग टिल दिस पॉइंट, व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड? यहां तक क्यों रुकना है? यहां तक क्यों रुकना है? यहां तक क्यों रुकना है? पढ़ो अपनी, अब एग्जाम्पल पढ़ो, क्या बोलता है एग्जाम्पल? रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम टू कैनोनिकल फॉर्म। व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म? कैनोनिकल फॉर्म सर एक ही फीडबैक चाहिए ना कैनोनिकल में? यस यस यस, सी आई विल शो यू, इसको अभी भी नहीं समझा है। ये देखिए सर, कैनोनिकल फॉर्म आपको दिखा देता हूं मैं, किधर पढ़ा था हम लोगों ने। ये आपको ट्रिक कर सकता है, जिस कैन ट्रिक यू। ये देखिए सर, B इज योर सिंप्लीफाइड मॉडल और कैनोनिकल फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म में लेकर आना है जहां पे आपको एक फॉरवर्ड पाथ दिखना चाहिए और एक फीडबैक पाथ दिखना चाहिए। दिस इज योर सिंप्लीफाइड और कैनोनिकल फॉर्म। आपको अगर ये बोलता फाइंड इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन, तो मैं यहां तक आता। अगर वो मुझे बोलता फाइंड कैनोनिकल फॉर्म, तो मैं यहां तक आता। इज इट क्लियर टू यू? एग्जाम्पल 2 जो है मुझे वो बता रहा है कि भाई कैनोनिकल फॉर्म वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डोंट बी कंफ्यूज, अगर आप यहां तक करोगे यू विल लूज द मार्क्स। If you come till this point, you may lose the mark because this is not the canonical form. The canonical form means you have to keep one feedback
path as it is, as rightly told by Neeraj. Getting sir? Okay, चलो ये आप लोग ने यहाँ तक देखा. I'll share this PPT with you, don't worry. PPT will be shared with you and even I'll be sharing with you the video of this. The example 2 देखा आप लोगों ने. Now just have a look at this example now. Actually example number 3 है, but anyways don't go with the name. Example 5 कहाँ से आ गया? Example number this. Simplify the block diagram. अभी इसमें कुछ बोला नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म करना है कि क्या करना है. यू कैन गो अप टू फाइनल ट्रांसफर फंक्शन. टेल मी सर, कैसे करोगे आप? सबसे पहले डरना नहीं है. Get acquainted with the components. Start shifting summing point towards left. Start shifting takeoff point towards right. ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, हुकुम का पत्ता है. ये हुकुम का पत्ता मुझे याद रखना है. ये मेरा एस कार्ड है. ये ब्रह्मास्त्र को मुझे याद रखना है. जितना भी मेरा समिंग पॉइंट सबको लेफ्ट में फेंकने का, जितना भी टेक ऑफ पॉइंट को राइट में फेंकने का, और बाद में फिर कैस्केड, पैरेलल, फीडबैक इसको यूज करते करते मुझे मकड़ी का जाल धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. कम ऑन स्टार्ट सर, टेल मी कैसे करोगे? चलो कौन बोल रहा है भाई? कौन आ रहा है हॉट सीट पे बताने के लिए? सर हम जीवन के राइट वाले समिंग पॉइंट. You keep quiet. Sir, Person. जीवन Not even Kundan. Some any other person. और कोई जिसका आंसर देगा? चलो फास्ट फास्ट फास्ट. सर ये तो फर्स्ट वाले जैसा ही लग रहा है, उसमें सिर्फ नेगेटिव फीडबैक है. हाँ चलो भाई, फर्स्ट तो बताओ भाई कैसे करोगे? सर ये तो फर्स्ट वाला जैसे किया था वैसे ही करेंगे. ओके. वो मिडल वाला समेशन पॉइंट को लेफ्ट में ले लेंगे और G2 G3 के बीच वाले टेक ऑफ पॉइंट को राइट में ले लेंगे. बराबर है. तो वो सैम और पैड याद है ना आपको? हाँ. एमर्सन डिसूजा को याद रखने का, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड बिफोर द ब्लॉक मल्टीप्लाई. फिर पैडमैन को याद रखने का, अक्षय कुमार को, पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड, पिक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक मल्टीप्लाई. यस स्टार्ट. तो सबसे पहले क्या बोला आपने सर, क्या करोगे? समिंग पॉइंट को लेफ्ट में लेंगे G1 के. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. समिंग पॉइंट जो दिख रहा है आपको, चल भाई तू कोने में आ जा, इधर आ जा. तो मैं किसको क्रॉस करने वाला हूँ? जीवन को क्रॉस करूंगा मैं. तो जीवन को अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो जीवन डिवाइड में चला जाएगा, जैसा आपने नोट किया था हमने. समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक इट इज डिवाइड है ना, इट विल बी गोइंग डिवीजन मोड. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये देखिए सर, बराबर है. यही हो गया आपका G1. फाइन. फिर G1 G2, यहाँ पे H1, ये फीडबैक बन जाएगा, ये कैस्केड में. And this how you can solve the problem. Any doubt over here? Any doubt over here? बराबर ये आंसर आया. Any question? नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है? Can we go Sir, to understood. Can we go to another example? चलो, another example is waiting for you. फटाफट. अभी कौन बताएगा? Now who is going to take over? Come on, hot seat is waiting for you. सर एक डाउट था सर. So we'll start with this. फर्स्ट के आंसर में बोलो. -G1 G2 G3 आना चाहिए ना? इधर गया भाई फर्स्ट वाला. कहाँ पे आना चाहिए भाई? -G1 G2 G3. फिफ्थ ऑलमोस्ट फर्स्ट जैसा ही है. तो फिफ्थ में हमने +G1 G2 G3 लिखा है, तो फर्स्ट में माइनस आना चाहिए ना नीचे डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म. Yes, anyone can help. What is trying to say? सर लास्ट टर्म जो है डिनोमिनेटर में, हाँ ये प्लस है. हाँ तो फर्स्ट में भी सेम आंसर है फर्स्ट का. हाँ तो देखो यहाँ पे ये माइनस है, दिस इज माइनस राइट. तो माइनस का उल्टा प्लस होता है ना, इसलिए प्लस आया. +G1 हाँ G2 तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था. ये सेम था फर्स्ट का आंसर. ओके. हाँ बराबर, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था. ओके. हाँ आई थॉट उधर भी प्लस माइनस. था. हाँ तो माइनस का प्लस हुआ यहाँ पे, बराबर है. यस क्लियर है? डाउट इज क्लियर? यस सर. ओके, थैंक यू बेटा. ओके चलो फास्ट.
ये कौन सॉल्व करेगा अभी? चलो कौन स्टार्ट कर रहा है? एनीवन कैन टेक। सर G1 G2 का बीच वाला समिंग पॉइंट लेफ्ट में कौन है, कौन बोल रहा है? अच्छा, नमिता। कम ऑन, ओके नमिता स्टार्ट। G1 G2 के बीच वाला जो समिंग पॉइंट है सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा। नमिता तुम्हारा 4:30 बज गया है, यू वांट टू गो टू डेंटिस्ट राइट? सर डेंटिस्ट नहीं, आई स्पेशलिस्ट। अच्छा आई स्पेशलिस्ट, ओके वेरी गुड। ओके तो मकड़ी के जाले से डर नहीं लग रहा है ना आंखों को? नहीं ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट, टेल मी। सर वो G1 G2 वाला पहले लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट में कैसे चले जाएगा भाई? तो समिंग पॉइंट है ना, समिंग पॉइंट को राइट में लेके आओगे? सॉरी, हाँ सॉरी उल्टा बोला मैंने। हाँ, समिंग पॉइंट हैज टू गो टू लेफ्ट। अपना ब्रह्मास्त्र को याद रखने का, समिंग पॉइंट शुड ऑलवेज गो टू लेफ्ट, टेक ऑफ पॉइंट शुड गो टू राइट। राइट। हाँ तो समिंग पॉइंट को आप लेफ्ट में लेके चले जाओगे, है ना? तो ये जो समिंग पॉइंट है, नमिता का बोलना है कि भाई सर समिंग पॉइंट को आप यहाँ पे फेंक दीजिएगा, तो भाई G1 को क्रॉस करेगा तो वो H2 से डिवाइड हो जाएगा। यस वेरी गुड, ओके देन G1 G2 विल बिकम इन पैरेलल हो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसके बारे में आपको क्या बोलना है? इसके बारे में कुछ बोलना है? ये टेक ऑफ पॉइंट है ना बेटा, दिस इज पिकअप पॉइंट। पिकअप पॉइंट को यहाँ लेके चले जाओ, खपान, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? अच्छा नहीं, मैं वो उसके G2 G3 के बीच वाला समिंग पॉइंट को देख रही थी तो मैं कंफ्यूज। समिंग पॉइंट कहाँ पर है? हाँ ठीक है समिंग पॉइंट है, बट मैं इसकी बात करूँ, इसको यहाँ लेके जा सकते हाँ, हो ना? तो वो राइट में चला जाएगा। हाँ तो ये G3 G4 ही कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन। चलो फिर वो फीडबैक पाथ मिल जाएगी। यस बेटा यस। चलो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखो ये बराबर है, स्टेप नंबर 1 है ना। समिंग पॉइंट को आपने क्या किया इसने? First we need to eliminate G3 G4 H1, G3 G4 H1। ओके तो ये भाई ने इसको उठा के यहाँ रखा, ठीक है। What he has done, उसने ये प्रोसीजर पहले फॉलो किया, इसने इसको उठा के यहाँ लेके गया, तो ये G4 H2 अपॉन G4 हो गया। डन, अंडरस्टूड। फिर G3 G4 कैस्केड एंड H1 इन फीडबैक, वो ये करने वाला है। इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा भी तरीका सोचने का बराबर था, उसका तरीका अलग है। अल्टीमेटली द पर्सन हैज टू रीच टुवर्ड्स द रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम। यू कैन फॉलो एनी ऑफ द प्रोसीजर, बोथ विल फेच यू सेम आंसर, डोंट वरी अबाउट इट। ओके आगे बढ़ते सर। एलिमिनेट G3 G4 H1, इसको एलिमिनेट कर देगा। इसको आंसर आया ये G3 G4, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस G3 G4 H1, 1 माइनस G3 G4 H1। डन। नाउ इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या? G2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा G2 G3 G4, 1 माइनस G3 G4 H1। डन। देन यू कैन हैव दिस इन फीडबैक। ये देखिए बराबर, यहां तक समझा क्या चल रहा है? ये फीडबैक में डाल दिया H2 अपॉन G4, G4 G4 कट, ओके। And this is your final reduced example. Just have a look at it. Any doubt you have, let me know. Any question at this point? Example number 6. Sir, understood. नमिता समझा? हाँ सर। चलो another example. This example is from Norman Niss, page number 242. Anyone can try. अभी कौन आ रहा है हॉट सीट पर? Some new student. Yes. The more you participate, the more you will enjoy. Participation is important. गलत हो गया चलेगा. We are here to learn the things. Yes, who is coming next? चलो फास्ट कौन आ रहा है अभी? राहुल जोशी, आर यू देयर? अमीशा जाधव, अनिश्री,
चेतन पाटिल, yes, fast. Yes, sir. मिताली, are you there? Yes. चलो बोलो, निशाली, कौन आ रहा है कुर्सी पे बैठने के लिए? हॉट सीट आपका वेट कर रहा है। चलो स्टार्ट बेटा, फटाफट। कैसे करोगे इसको? How to do this? I've already told, this is a very interactive PPT. You have to participate. It is not a one-way communication. It has to be two-way. That is the reason I was looking for 008. मस्त बड़े रूम में, एसी वाले रूम में मजा आया होता करने के लिए. But because of admission work is going on, that room is not available. इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमको ऑनलाइन पे स्विच करना पड़ा. यस फटाफट, कौन आ रहा है? Sir, ठीक है, can बोलो I श्रुति. try? Yes, sir. We will add up H1, H2, H3, Okay. and we will multiply G2, G3. So then we'll get a feedback loop, and that will be further multiplied with G1. करेक्ट, वेरी गुड. श्रुतिमन ने बहुत अच्छा आइडिया दिया. बोले सर एक काम कर दीजिए, आप H1, H2, H3 को एज पैरेलल ब्लॉक्स है ये, इनको आप एक साथ जोड़ दीजिए. ये हो जाएगा -H1 प्लस H2 माइनस H3. देन यू हैव G2, G3 इन कैस्केड, एंड देन ओवरऑल फीडबैक लगा के G1 से मल्टीप्लाई करो. खत्म हो गया. और एक तरीका है, सेकंड तरीका इसमें है कोई सेकंड तरीका जो लगा सकता है? सर G2 G3 पहले कैस्केड कर सकते हैं, फिर वेरी वो गुड, ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं, फिर सेकंड फिर थर्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. हिबा का दिमाग ऐसा है, हिबा का बोलना है कि सर एक काम करते G2 G3 को पहले कैस्केड में कर दीजिएगा, फिर इसको H1 के साथ में फीडबैक, तो आपको मिलेगा G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H1. दैट विल कम अगेन इन फीडबैक विद H2, देन दैट विल कम अगेन इन फीडबैक विद H3, एंड देन यू मल्टीप्लाई विद G1. वो भी चलेगा. both can fetch the same answer. तो जो भी आपके माइंड में आया है उसको फॉलो करिए. डोंट थिंक यार श्रुतिमन ने ऐसा बोला है तो मैं श्रुतिमन को फॉलो करती हूँ, अरे नहीं हिबा ने ऐसा बोला तो मैं उसको फॉलो करते, तो कुछ भी नहीं है. वॉट एवर वे यू हैव गॉट इन योर माइंड, अप्रिशिएट दैट एंड गो अहेड. बोथ आर करेक्ट एट देयर ओन पावर. ओके, कंटिन्यू विद दिस. चलो तो हम लोग ये देखते हैं इसने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है. फाइन, इसने तीनों समिंग को एक साथ कर दिया, माइनस प्लस माइनस. The three summing junctions can be collapsed into single summing junction. और फिर वो श्रुतिमन वाला स्टाइल उसने अडॉप्ट किया है. ये देखिए, H1 minus H2 plus H3 with minus sign common. Are you getting sir what I'm trying to say? श्रुतिमन ने क्या बोला था कि सर एक काम करिए, माइनस H1 plus H2 minus H3, माइनस H1 plus H2 minus H3. तो उसने माइनस को बाहर ले लिया और माइनस को बाहर लेके उसने बोला इट इज नेगेटिव फीडबैक H1 minus H2 plus H3. अगेन इट इज द सेम, इट इज सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड? एंड देन ही कम्स विद द फाइनल आंसर एज लाइक दिस. यू कैन फॉलो श्रुतिमन वाला प्रोसीजर, you can follow Hiba wala procedure, or you can even follow the procedure given by Norman Niss. All three will fetch you same answer. ये आमिर खान का डायलॉग है, every child is special. हर चाइल्ड को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया जाता है. So depending upon your talent, depending upon your style, you can go ahead. Ultimately, you will come to one simple conclusion only, and that is the final answer: G1, G2, G3 upon 1 plus G2, G3. In brackets, you have H1 minus H2 plus H3. Have you understood this answer or not? Yes, sir. Okay, the final call. Anyone who has not yet understood anything can raise his hand. सर कुछ नहीं समझा क्या चल रहा है. आपने 3 बजे सेशन चालू किया है, घड़ी में अभी 4:45 बजने को आ गया है. It is like almost 1 hour 45 minutes. And just 15 to 20 minutes more to end with the session. कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि सर क्या आपने पूरा वीकेंड मेरा खराब कर दिया, कुछ नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है. तो है यहाँ पे ऐसा, काइंडली रेज योर हैंड. नो ऑफेंस. नो वन टू रेज हिज हैंड कि सर कुछ नहीं समझा, आपने पूरा मेरा 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपने. ओके, सो आई एम
हैप्पी लाइक एटलीस्ट किसी का मैंने दिन बर्बाद नहीं किया यहाँ पे। आई एम वेरी मच हैप्पी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, यू आर वेरी लवली ऑडियंस, आई अप्रिशिएट दैट। Come on, now we have another example in front of us. How will you solve this? I like it motivation, guys. Example number 8. Any one of you can start with it. जिसको अभी भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है, so that person can come on the hot seat and try to figure out. I am anyways available to help you with this. सर k and 1 upon s plus 1 का कैस्केड, फिर उसके बाद s फीडबैक के साथ यूज होगा एंड देन 0.1 के साथ फिर से फीडबैक। ओके, वेरी गुड, थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। राहुल जोशी का हॉट सीट पे विराजमान करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। हम आपके आभारी है आपका यहाँ पे हॉट सीट पे आने का। तो यू हैव राइटली टोल्ड बेटा कि k will be multiplied with 1 upon s plus 1 and that will come in feedback with s and then that will again come as the overall feedback with 0.1 to fetch me the proper final answer. Thank you beta, thank you very much, God bless you. Any other student who is having some any other solution कि सर नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था? Any one of you? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग ये सोल्यूशन को लेकर। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो k upon s plus 1 s 0.1 and then you have this as the final answer in front of you. Any doubt with this? राहुल जोशी समझ रहा है बेटा क्या चल रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10 फ्रॉम अगेन नॉर्मन नीस, पेज नंबर 243। रिड्यूस द सिस्टम टू अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन। अगेन बड़ा बहुत बड़ा मकड़ी का जाला दिया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं है। अभी हम लोग समझ गए हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स कमांडो एकदम होशियार हो गए हैं। कोई भी टेररिस्ट सामने अगर आ गया तो उनको डायरेक्ट मौत के घाट उतार देंगे। चलो भाई मुझे बताइए सर इसको कैसे आप रिजॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस? यस, एनीवन? Sir, we can first place the pickoff point at V3 on the right of G2. टेक ऑफ पॉइंट, ओके, टेक ऑफ पॉइंट, फाइन। तो ये है भाई टेक ऑफ पॉइंट। ये टेक ऑफ पॉइंट को श्रुतिमन का बोलना है सर एक काम करिए, ये टेक ऑफ पॉइंट को उठा के आप यहाँ फेंक दीजिए। जिस हिसाब से मक्खी को दूध में से उठा के बाहर फेंका जाता है, वैसे दूध में से मक्खी उठा के बाहर फेंक दीजिए, टेक ऑफ पॉइंट को उठा के बाहर फेंक दीजिए। तो भाई ये बाहर को फेंक दिया, अब क्या करना है? सर अब ऊपर वाले शॉर्ट सर्किट में 1/G2 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, 1/G2 वहां पे आ जाएगा, वेरी नाइस। हाँ, तो V4S प्लस और फिर ये जो है ये आपस में फीडबैक बन सकता है। हाँ, एंड देन उसके राइट साइड में भी जो लूप है वो भी एक फीडबैक लूप बन जाएगा। हाँ यस, ये भी फीडबैक बन सकता है, वेरी गुड। और फिर ये फीडबैक को आप कैस्केड में डाल सकते हो G1 के साथ में। हाँ, एंड उसका एक आउटर फीडबैक लूप ओवरऑल बन जो है वो जाएगा। H1 के साथ में। क्या बात है बेटा, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सबको समझा ये लॉजिक जो श्रुतिमन ने बताया है? चलो तो आगे बढ़ते हैं सर, इसको साथ में न्यूमेरिकल को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। So we move G2 to the left of the pick-off point. तो जैसे आपने कहा कि भाई 1/G2 यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, फाइन। क्या तो समझ गया आपको क्या किया है? नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ये पिक ऑफ पॉइंट उठ के यहाँ तो आ गया, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना? आपका जो समिंग पॉइंट, आपका जो फीडबैक है, वो फीडबैक जो है वो इस ये रेंज में रहेगा। यस और नो? यस, ये तो रहेगा ना। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 + 1/G2. So you have this as the feedback and this as a parallel path. Agreed or not? What I'm trying to say? Yes sir. Okay, so don't be under that presentation कि अरे यार सर ये तो चला गया, ये कहाँ से 1/1 + G2 आ गया? तो 1/1 + G2 जो है वो यहाँ से आया है,
हैव यू अंडरस्टूड विद दिस और नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये देखिए सर, यहां तक समझा है कि इसका आगे काम सिंपल है, ये फीडबैक, फिर ये फीडबैक और ये कैस्केड एंड देन ओवरऑल कैस्केड, खत्म हो गया। ये देखिए G1 G2, फिर ये दोनों को पैरेलल में डाल दिया, H2 अपॉन G1 प्लस H1, फिर ये आपका बन गया फीडबैक में, ये कैस्केड में, एंड देन द फाइनल आंसर विल कम लाइक दिस। हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? Yes, sir. ओके आपने शायद बचपन में सुडोकू गेम खेला रहेगा, सुडोकू। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड गेम सुडोकू? रेज योर हैंड्स। सुडोकू इट इज अ टाइप ऑफ अ टेक्निकल सुडोकू, राइट? एक टेक्निकल सुडोकू जिसको आपको खेलना है। सुडोकू खेलने के लिए भी आप अलग अलग पैतरे आजमाते हो, अलग अलग तरीके आजमाते हो, अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग वेज होता है, एंड अल्टीमेटली यू कम टू द सेम सोल्यूशन एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट, राइट? सेम थिंग यू हैव टू डू। एक आपको एग्जांपल दिया है कि भाई ये बहुत बड़ा मोटा ब्लॉक डायग्राम है, इसको आपको धीरे धीरे छोटा छोटा करते जाना है। आप कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करो, कोई भी टेक्निक अप्लाई करो, बट लास्ट आंसर विल बी द सेम दैट व्हाट यू विल बी गेटिंग एज पर द सोल्यूशन, as per the technical books, as per Norman Mees, as per Hogarth and whatever it is. Okay, it is very simple. 10 मार्क आराम से मुट्ठी में आते थे बच्चे के, अगर आपको ये शॉर्टकट या ट्रिक सबको पता है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। ओगाटा का नाम इधर आ गया भाई, ओगाटा का एग्जांपल है, ओगाटा का पेज नंबर 47। नॉर्मन मीस की कुछ एग्जांपल देखा हम लोगों ने, हम लोग ओगाटा का एग्जांपल देख रहे हैं। एंड ऑल द बुक्स आई हैव शेयर्ड विद यू इन ई बुक फॉर्मेट, यू कैन गो थ्रू दैट। कंट्रोल सिस्टम बुक्स, सीएस बुक्स, एक ड्राइव फोल्डर आपके साथ मैंने शेयर किया है, वो ड्राइव फोल्डर में जाके आपको बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, और यू कैन टेक इट फ्रॉम लाइब्रेरी एज वेल। कम ऑन, कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट विद दिस एग्जांपल? Any student who has not yet understood, not yet answered so far? और जिन लोगों ने सुडोकू खेला है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे जाना चाहिए, ठीक है? तो that person can also answer with this question and let me help out with this. Yes, क्या लगता है सर, क्या होगा इसको, कैसे करोगे आप? ब्रह्मास्त्र को याद रखिए, समिंग पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाना है, टेक ऑफ पॉइंट को राइट में लेके जाना है, और धीरे धीरे फिर आपका आंसर जो है वो फीडबैक फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फीडबैक एंड गेट द आंसर। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सर G1 को राइट में लेके जाएंगे एंड देन H3/G1 कर हो जाए। क्या बोल रहे हो अनुश्री? कैन यू बी मोर प्रिसाइज? G1 को राइट में लेके जाएंगे। ओके, तो समिंग पॉइंट जो है उसको मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा। वेरी गुड, वो ब्रह्मास्त्र को फॉलो करो, मेरा ट्रम्प कार्ड है। तो भाई अनुश्री मैडम का कहना ये है कि एज शी हैज राइटली टोल्ड, बेटा आई अप्रिशिएट योर नॉलेज, कि सर इसको उठा के यहाँ फेंक दीजिए ताकि G1 राइट में चला जाएगा। हाँ, फिर क्या करना है? तो राइट में लेके जाओगे, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक इट विल बी डिवाइड, यस और नो? तो H3/G1 हो जाना चाहिए। हाँ, फिर G1 G2 कैस्केड में, करेक्ट? G1 G2 कैस्केड में, समिंग पॉइंट चला गया ना अभी इधर, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समिंग पॉइंट यहाँ आ गया, अड़चन खत्म हो गई। तो G1 G2 कंबाइन, देन दैट विल कम इन फीडबैक विद H1। तो ये पार्ट ये खत्म हो गया। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड बेटा, टेक ऑफ पॉइंट को उठा के वहां फेंक दीजिए आप। तो टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं वहां फेंक दूंगा तो यहाँ पे जो G4 था वो क्या हो जाएगा? पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड, यू विल बी अगेन हैविंग G4 इन डिवीजन, ओके? एंड देन G3 G4 कंबाइन, G3 G4 विल गो इन फीडबैक विद H2, एंड देन ये दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करके कैस्केड, खत्म, गेम ओवर। समझा आपको? सिंपल। थैंक यू अनुश्री, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर नॉलेज बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये देखिए सर, सही है, सही जा रहा है प्रोसीजर। फर्स्ट मूव द ब्रांच पॉइंट बिटवीन G3 एंड G4। देखिए G3 G4 को उठा के उसने यहाँ डाल दिया, ये मिल गया H3/G4, जैसा आपने कहा था, बिल्कुल सही, ठीक है? फिर G1 के ये साइड चला गया तो G1 अपॉन में आ गया, देन यू हैव दिस, सेम स्टाइल, ओके?
पहुंच गए यहां तक? एंड फाइनल आंसर इज देयर ऑन द स्क्रीन. अंडरस्टूड अनुश्री? Yes, sir. ओके, इट इज प्रीटी सिंपल, वेरी सिंपल. ये एक ऐसा यूनिक मॉड्यूल है, एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जहां पे आपको कोई रॉकेट साइंस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए, ये याद करना है, वो रट्टा मारना है, ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव पता होना चाहिए. कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है. इवन 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसको आराम से कर सकता है, बिकॉज सिंपली इसमें लॉजिक है कि भाई इसको लेफ्ट में जाना है, इसको राइट में जाना है, बस और कुछ नहीं है. एंड आई ऑलरेडी हैव गिवन यू द टेक्निक्स, सैम एंड पैट, सैमुएलसन का नाम लेने का, शुरू हो जाने का. ठीक है, ओके. चलो, नाउ अनदर एग्जांपल. हाउ विल यू डू दिस? ये कैसे करोगे? How will you do this? मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग को देख के डर नहीं लगता होगा कि अरे यार ये क्या आ गया मकड़ी का जाला. Because now you are getting a hang of it. I hope the things are getting more diluted and in your pocket. कि भाई 10 मार्क तो आराम से इसमें आ ही जाएगा. RS के जस्ट बाजू में जो दो समिंग पॉइंट्स है उनको मर्ज कर सकते हैं, मतलब नीचे वाला समिंग पॉइंट को हटा ही सकते हैं अगर चाहिए तो. ओके, वेरी गुड. H3 को हटा के इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. ये देखिए, ऐसा एग्जांपल है. ठीक है, करेक्ट है. ये था ना, पहले इसको इसने फीडबैक पे घुमा दिया. फीडबैक ये वाला. डन? यहाँ तक समझ गया? ओके. मूविंग अ पिक ऑफ पॉइंट ए बिहाइंड द ब्लॉक G2 अपॉन, अब ये इसको ये यहां लेके जाने वाला है. ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा. पिक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाय G2 आफ्टर द ब्लॉक. डन? इन मल्टीप्लीकेशन विथ H1 and you have this. This is in parallel form. ये आपका parallel form है. तो H1 multiplied by this plus H3 plus H3. It's not a feedback loop. Yes, plus H3. ये देखिए, plus H3. Done. And then this will come in feedback with this forward path G1 G2 upon 1 plus G1 G2 H2. Done. Understood this or not? Yes. थोड़ा typical था, but okay. Like once you get hang of it, the things become simple. Now, how will you do this? This is a multiple input system. Like you have R and U. इधर है U, ये U है. This is U. This is R. तो R and U है, और ये दोनों को आपने R और U को दोनों इनपुट्स है, both are inputs, and you have to find output C. How will you do this for a multiple input system? It's very simple. If it's a multiple input system, you have to consider one input, take other input as 0, ignore that, okay? Find the output C because of only R. Second time you consider only U and you ignore R and find the output C only because of U. And the final output will be of both R plus U. इसको हम कहते हैं superposition method. I hope you are aware with the superposition principle. Now let's start with it. Yes, How sir. it to be done? Put U equal to 0. I am assuming there is nothing U. There is no input coming at all. Okay. So what will be the output? अभी मुझे बताइए सर इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of U equal to 0? U equal to 0 मतलब यहाँ से आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ से. यहाँ से कौन आया, यहाँ से कौन कौन आ रहा है? तो यहाँ पे कोई कैसे को सर यहाँ पे R था, ये आगे सपोज यहाँ पे अगर X होता है एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हो जाएगा XG1. यस और नो? अभी ये XG1 यहाँ तक आया, यहाँ पे आया 0. व्हाट विल बी द आंसर? यहाँ विल बी द आंसर ओवर हियर XG1 ओनली. यस और नो? यहाँ पर XG1 ही रहेगा ना, because यहाँ पे 0, XG1 plus 0, XG1 plus 0 will be equal to XG1 only. So do you think I require this summing point over here? No, it is useless. Because there is nothing coming over here. यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से, तो ये मतलब ही नहीं है. So I can remove this summing point from it, that this problem itself,
and then my final answer will look like this directly. समझा आपको सर कैसे आया ये? कुछ डाउट? अर्पित समझा ये? ठीक है, यहाँ पे u है ही नहीं ना ये. There is no u at all. U is considered to be zero because of superposition principle. तो अगर यहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा है, यहाँ से आया xg1 और वो सेम टू सेम xg1 आगे बढ़ने वाला है, तो मैं क्यों अननेसेसरी चीजें और डाल के कॉम्प्लिकेट करूं? ठीक है, I simply get this as an answer. This is C of R because of input R, and then I have the output CR will be equal to G1 G2 divided by 1 plus G1 G2 as per our feedback formula, considering H equal to 1 unity feedback. Understood till here? Okay, समझा यहाँ तक. अभी पार्ट टू मतलब कौन? Put R equal to 0 and consider U. Put R equal to 0 and consider U. अब यहाँ पे ध्यान दो सर, पे अटेंशन नाउ. इसका मतलब क्या है? अभी R कितना है? कुछ R की वैल्यू है? नहीं है. कितनी वैल्यू R की? R की वैल्यू है 0. R की वैल्यू है 0. ठीक है, यहां से सपोज आया X. ठीक है, क्या होगा? एक काम करते, वन सेकेंड सर, वन सेकेंड ना, सॉरी. यहां से आया X. ठीक है, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर एट दिस पॉइंट. क्या आना चाहिए? R, यहां से जो आया R -1 minus X. Do you agree with this or not to be R minus X? Yes or no? Yes sir. This will be R minus X. अब मैं बोलता हूं मेरे भाई R है ही नहीं. यहाँ पे जो राजेश था ना, राजेश चला गया छुट्टी पे, चला घूमने के लिए चला गया. R equal to 0. R equal to 0. What will be the answer? Minus X. So now you guys tell me, अगर मुझे यहाँ पे minus X चाहिए और मैं अगर समिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने समिंग पॉइंट को मैंने उड़ा दिया कि भाई समिंग पॉइंट टाटा कल्टी बाय बाय, समिंग पॉइंट यहाँ पर अगर मैं उड़ा देता हूं तो फिर मैं माइनस का क्या करूं? मुझे माइनस भी चाहिए. समिंग पॉइंट उड़ा के नहीं चलेगा. समिंग पॉइंट अगर मैं उड़ा दूंगा तो गेम ही खत्म हो जाएगा. तो व्हाट आई एम सपोज टू डू देन? 0 माइनस. ओके, अर्पित बोले सर 0 माइनस. सर एक काम करते हैं ना, अगर आप यहाँ पे ब्लॉक अज्यूम किए तो अगर, और ब्लॉक का वैल्यू अपने रखा -1, तो नहीं चलेगा क्या? एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि रीना मैडम का यहाँ पे आपने लेक्चर लगा दिया VI बोलकर, और यहाँ पे है गेन G. व्हाट इज द आउटपुट सर? तो आप आउटपुट बोलते सर गेन, द आउटपुट विल बी G टाइम्स VI. तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया और ब्लॉक के अंदर में G ने मैं ब्लॉक के जगह -1 लिखता हूँ. तो अगर पे मैं लिखूंगा -1, टेल मी सर व्हाट विल हैपन सर? यहाँ पे आप G के जगह -1 अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? -1 यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे मिलेगा -VI मुझे मिलेगा. तो सेम थिंग यहाँ पे, व्हाई डोंट आई पुट हियर -1 का ब्लॉक and get rid of this summation point? Understood the shortcut? समझा कि सर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं? Yes sir. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ये समिंग पॉइंट को भगाकर मैं यहाँ पे -1 डाल देता हूं. इसलिए यहाँ पे उसने लिखा पुट -1 into a block representing negative feedback effect. ये देखिए सर, -1. समझा अर्पित -1 कैसे आया वो? ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिक था यहाँ पे, जो ट्रिक आपको समझना जरूरी है. एंड देन ऑब्वियसली यू कैन गेट द आंसर ऑफ CU because of U only. So you will have this as the answer. बराबर है, U इधर आ गया, ये G2 है, ये CU, फिर ये -1 और ये G1 के साथ में इधर आके you get as the rearranging. Have you understood rearrangement? समझा rearrangement? -1 is in series with G1, -1 in series with G1, and that goes as a positive feedback to the summing point. And then you have G2. This is your forward path. This is your forward path. I'll redraw for you. See, this is your forward path, and I'll change the color. This is your feedback path. देखो बराबर है, G2 के साथ में G2 आ गया फॉरवर्ड पाथ में, और फीडबैक पाथ में आ गया -1 G1. बस खत्म. यहाँ पे आने के बाद में then what you can write over here as an answer. Understood sir or not? क्या किया? G2 upon 1 plus G1 G2 U, and the final answer will be combining both of them, and then I have this as the final answer. Have you understood sir? Now we come to the last example of the day. Last example of the day. This is a multiple input
and multiple output example. You can see here there are two outputs, C. Sorry, you have your C and this is your R, U1, U2. Again, this is a multiple input example, not a multiple output, multiple input. This is a multiple input. So you have three inputs over here, R, U1 and U2, R, U1, U2. So how to solve this? Again, the same style. I'll share the PPT with you. You can go through this. Okay. Then you take another point. Isko kare aapne. Now, this is what I'm trying to say. Now you can see you're having two inputs, R1, R2, and two outputs, C1, C2. This is your example of multiple input, multiple output. MIMO system hai. Namita, are you there? I think Namita left. Okay. सर हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. वहां पे हम लोगों ने देखा था सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. डू यू रिमेंबर दिस CISO system? Yes, sir. There was one more called as MIMO system. Multiple input, multiple output. So this is the example of multiple input, multiple output. Now how to do this? Simple hai. First ignore output C2. Consider only C1 is there. And C1, when you consider C1, at that time you consider only R1 is there. Then C1 because of R2. नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ. Pay attention. पहले C1 को assume करो. C1 निकालो R1 की वजह से. फिर C1 निकालो R2 की वजह से. Done. फिर C2 लेने का. फिर निकालने का C2 because of R1. फिर C2 निकालने का because of R2. And then final will be, so and then you will be have C1 and C2. समझा आपको कैसे करना है? I'll show you what I'm trying to say. Just 2 minutes more and you see R2 equal to 0. C11 निकाला. फिर C12 निकाला. C1 because of R1, C1 because of R2. Then you go with C2. C2 because of R2 and C2 because of R1. Okay. Done. This is a skill assessment example which you can do it later. And then we come to the end of the today's answer. Today's thing. Any doubt, any question you have so far? Any doubt, any question you have so far?